when I'm painting Golden Temple, I do listen a lot of Gurbani at that time. It obviously helped me better to focus on that particular subject. 3 W's of a painting or a fine art work. It was अपना what's possible, what's working, what if and what. आपने ऐसी क्या चीज सीखी BFA के वक्त जो आई थिंक एक आर्टिस्ट को आज की डेट पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट को नहीं पता होएगा? पिकासो ने जब ब्रेक करना शुरू करा पेंटिंग, so that was his what if ना, एक पोर्ट्रेट नॉर्मल and what if I broke it into different shapes. Yeah, so you even tell कि कौन सा पेंसिल यूज करना है, कैसे यूज करना है. So I mean, why so much of transparency? 20 years पहले it was a very different field and अभी it's completely different. आप पहले reach नहीं कर सकते थे लोगों को, now you can reach the whole world. Thread art इतना famous हो गया कि you use threads to make, you know, a single painting or an artwork. Is this a medium which would be welcomed in a government college? I don't think so. कोई भी उठ के आज की डेट में कैमरामैन बन जाता है, DOP बन जाता है. कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मल एजुकेशन इसके लिए? बेसिक तो स्ट्रांग होनी चाहिए. जो बायर्स होते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये तो अभी बच्चा ही है, अभी अपकमिंग आर्टिस्ट है, चाहे उसका आर्टवर्क बहुत अच्छा है. सो ये बैकलैश होता है आर्ट इंडस्ट्री में. एंड हाउ डू वी ओवरकम दिस? मैं तो मानता हूँ कि यू शुड ट्राई डिफरेंट मीडियम्स. 99.99% स्ट्रगल यही होती है आज के आर्टिस्ट. right. हाउ डू आई क्रिएट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट? You have to experiment a lot first of all. They told कि अरे we have to present it to President of India. I was like, अच्छा. So you're saying AI will create its own market? Yeah, AI will create. AI, there will be a different art for AI. अभी जैसे for example in designing, What an original artwork is and what a commercial artwork is. filmmaking is a much more larger field compared to art field. If you won't be pursuing art, तो क्या कर रहे होते हैं? Production designer, who is the artist behind the film, उसका क्या काम होता है कि how your film feels and visually look. So a production designer is like a painter but with the frame. उसको frame set करना होता है, frame को beautify करना होता है. मुझे texture चाहिए, I'll use a fan brush or I'll use a damage brush. So you should know which brush serves which purpose. Yeah. आपका experience और आपकी जो खुद की मेहनत है वो ज़्यादा आपको सिखाती है ना. It's just a tool at the end of the day. आप उससे क्या create कर रहे हो? That is It is on you. Yeah. आर्टिस्ट के लिए ईगो इम्पोर्टेंट होती है? Hi guys, welcome to another episode of the Heartful Show where art meets the heart. Today I have someone very fun. इसकी भोली सूरत पे मत जाना. He's a very entertaining guy. He's also an art educator like us and we have the same goals when it comes to art. We educate people on art and this is what he's been doing. He's a student. He started as a self-taught artist but now he's pursuing his fine art. And yeah, we're going to hear it from the horse's mouth himself. Ekam Singh all the way from Pune. Hi. Hi buddy. कैसे हो? बढ़िया. How are you? All well. Finally now we're doing the podcast. Yeah, after long. Yeah, after very long and a lot of flight fuck-ups. But yeah, so this is... so Ekam, I mean, I want people to know who are you first. Like just a small two-liner introduction. So I am an artist, also art student and now a film student. And yeah, that's a basic about me. And I like to educate people about art and also love to do art and I want to be a good artist. वो तो of course you Of course. But Ekam, actually, you know, I want people to know, why do you educate people on art? क्या reason क्या है? So it all started when I started doing art. People used to ask me कैसे करते हो and all. So it was around after my 12th class. I thought to make a YouTube video, my first YouTube video, and then I uploaded it. And it was, I think, COVID चल रहा था तब. So that was the time I did my first YouTube video. बहुत ही डर के कैमरा के सामने बैठ के, and I recorded it in my small room. And then I uploaded it, and it got a nice response, few comments and all, कि अच्छा है and all. And then eventually I did a few. Those were तभी shorts नहीं आए थे, so it was a long form. Long videos. Yeah, so I used to do long form. I did it for almost a year. Then I got into art college. Then I went there. Then it all stopped. फिर वहाँ पे नहीं टाइम ही नहीं मिलता था करने का इतनी long form video. Then eventually reels came. So I thought I should try this. And so basically I used to follow this. He's a tech YouTuber, Mr. Who's the Boss. He makes a really good and interesting long form also and shorts also. I love those. And then I saw his short videos and I was like, it was like so engaging and good videos. I thought, yeah, I should try making similar videos in art.
and that's how it all started. I just did But was there a reason for you to specially educate people or not? Because बहुत artists होते हैं ना कि वो थोड़े ना prim and proper होता है कि they don't reveal their skills. But आपके उसमें तो you even tell the people कि कौन सा pencil use करना है, कैसे use करना है. yeah. So I mean, why so much of transparency? अरे it's like इतना like people don't know much about art. मतलब ठीक है, it's also about materials and also about techniques, but yeah, so you have to मतलब जब भी मैंने ट्राई करा था, आई ऑल्सो यूज टू सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जिनसे मैं इंस्पायर होता है ना. आई यूज टू लाइक ब्रेक डाउन में खुद करने की कोशिश करता, जिनके मुझे ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते थे. आई यूज टू ट्राई टू ब्रेक डाउन कि ये कैसे कर रहे हैं. लाइक वन एग्जांपल इज मार्सेलो बेरेंगे. आई यूज टू फॉलो हिम एंड आई यूज टू सी हिज वीडियो कि ये कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा है, कब पेंसिल यूज़ कर रहा है, कब वाटर कलर यूज़ कर रहा है, हाउ इज़ मिक्सिंग ऑल द मीडियम. इज़ अ मिक्स मीडिया आर्टिस्ट. सो वंस आई गॉट टू लर्न कि मुझे जब पता चल गया ना, देन आई thought कि यार why everyone should know this. So I eventually started doing it, and जैसे मतलब I get a lot of like comments and all, how do you do it? Every artist get almost. So वहीं से it all started. I just thought it's a good way. Everyone will get eventually educated about art, and yeah. And you started in 2018. I mean, no teacher, no classes. तो कैसे मतलब ये magic कैसे हुआ? I did have a art teacher in my school, but basic I had it as a fifth subject. बस स्कूल में आर्ट टीचर होती है, basic क्राफ्ट टीचर होते हो. या तो बेसिकली कैसे हुआ था स्टार्ट कि मैं स्कूल में आई हैड ह्यूमैनिटीज़ इन माई 11th क्लास, एंड वहाँ पे माई सिस्टर टोल्ड मी कि यू टेक फाइन आर्ट एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट बिकॉज वी हैड अ रियली गुड टीचर इन आवर स्कूल. सो आई थॉट कि मतलब आई वॉन्टेड टू लर्न इट, एंड आई टुक फाइन आर्ट एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट. एंड बस तभी मुझे रियलाइजेशन हो गया, दिस इज द वन थिंग आई लाइक टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. Not bad. And in your because in your family as well, I think your बुआ someone is also in the same field. Yeah, she used to do art. So मतलब वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव उनका इम्पैक्ट हुआ? So basically when like 11-12 तक तो it was fine, जब तक तुम एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट करे. then I was like I'll pursue it full time ना, and I'll also go to a art college. जब मैंने डिसाइड करा, so मैं बुआ asked me कि are you sure, like I was also in the field like 10-20 years back, and I know it's मतलब 20 साल पहले इतना नहीं था स्कोप है ना. so she asked me कि are you sure you want to pursue it and all. then I was like हाँ, अभी like 20 years पहले it was a very different field, and अभी it's completely different. आप पहले reach नहीं कर सकते थे लोगों को, now you can reach the whole world. Like you have Instagram, YouTube and all, yeah. So but एक ये डर नहीं होता एक because a lot of students, and you're also still a student, a lot of students drop out as well. You've now done you're doing your masters as well, but I'm pretty sure that in your college as well a lot of students must have dropped out. Yeah. तो क्यों drop out होता है in today's time as well? I think it also depends on like your interest and as well. Like I'll say like, so basically when I got into interesting story, when I got into art college कि so आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के यू नीड टू क्लियर द पेपर, ठीक है, एंड उसके लिए आपका रैंक आता है, देन यू आर गिवन दी यू कैन चूज योर सब्जेक्ट. सो लाइक इन आवर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, वी हैड 4 डिपार्टमेंट्स, अप्लाइड आर्ट, ठीक है, वी हैड पेंटिंग एंड स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकिंग. सो मेरा जब एडमिशन हुआ, आई डिडंट गॉट द बेस्ट रैंक, ठीक है. सो मेरा अराउंड 25-30 समथिंग रैंक था, एंड द सीट्स आर सो लिमिटेड है ना. तो वो ऐसे फिलअप ऐसे सेकंड्स में होती हैं. सबसे पहले अप्लाइड की सीट्स फिल होती है, देन पेंटिंग, देन स्कल्पचर, देन इट्स प्रिंट मेकिंग. एंड जब मैं गया था तो आई रियली वांटेड पेंटिंग. ऑब्वियसली आई वाज डूइंग पेंटिंग फ्रॉम लास्ट 3 years. मेरे को था क्लियर था आई वांटेड पेंटिंग. बट देन आई वेंट देयर एंड आई सॉ द स्कल्पचर्स इन द कॉलेज, स्टोन के एंड लाइक टेराकोटा एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक इन शॉक. एंड मतलब यार आई कैन डू स्कल्पचर एज वेल. आई मतलब मेरा इंटरेस्ट बन गया कि आई विल डू स्कल्पचर यहाँ पे, ठीक है. बट आई डिडंट हैड द बेस्ट रैंक, ठीक है. सो वहाँ पे सारी सीट्स फुल हो चुकी थी. लाइक आई डिडंट गॉट एडमिशन इन द फर्स्ट काउंसलिंग, देन सेकंड, थर्ड काउंसलिंग में. सो प्रिंट मेकिंग में से 2 सीट्स खाली हो गई, ठीक है. एंड दे कॉल्ड एंड फिर उन्होंने लाइक बुलाया कि थर्ड काउंसलिंग के लिए जिनके पीछे वाले रैंक है वो आ जाओ. एंड आई वेंट देयर, एंड द वन डिपार्टमेंट आई रियली डिडंट वांटेड, वही मिला मुझे. मतलब कि मुझे पता ही नहीं था कुछ प्रिंट मेकिंग के बारे में. एंड लाइक आई वाज लाइक यार ये नहीं, अप्लाइड भी चलेगा, पेंटिंग भी चलेगा, स्कल्पचर भी चलेगा, प्रिंट मेकिंग तो नहीं चाहिए. इस पता नहीं क्या लक्कड़ सी काट रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे थे उसमें वो. मतलब आई सॉ, मतलब मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ था, सॉ दी बैचमेट जिसका हो गया था जो कर रहे थे क्लास में. सो यार ये तो नहीं चाहिए, डेफिनेटली नॉट दिस. तो बट लिखा होता है जो वही होना होता है. आई गॉट प्रिंट मेकिंग, एंड उस टाइम पे मैं कहा ठीक है यार, अभी मैं साथ साथ मैं डू पेंटिंग एज वेल,
ठीक है पेंटिंग तो होती रहेगी, जब कॉलेज के लिए कर लेंगे थोड़ा बहुत प्रिंट मेकिंग जितना है. एंड first year is foundation, it's common. Then you get second year, you get into specialization full time and you do printmaking for 3 years then. And then I got there and I just loved the process. And matlab, I love printmaking. It's such a one of the best techniques of in fine art. Like it can teach you so much. And I think उससे मेरे को इतना प्यार हो गया ना प्रिंट मेकिंग से कि आई लाइक मेरा जब मैं गया था ना सेकंड ईयर में, आई वाज लाइक यार मैं इसको बस इतना ही करूँगा कि बस मेरे नंबर आ जाए एंड आई विल फोकस ऑन माई पेंटिंग एंड ऑल स्टफ. बट लाइक थ्रू आउट माई 3 years आई डिड इट लाइक फुल्ली इनटू प्रिंट मेकिंग. बहुत मैंने करी अच्छे से एंड लाइक आई एंजॉयड द प्रोसेस, आई लर्नड अ लॉट. तो वट आई फील इज़ लाइक अगर मेरे को मे बी अप्लाइड आर्ट मिल जाता तो आई मतलब कि मेरा उसमें शायद इंटरेस्ट ना बनता है इतना. सो मेरा इंटरेस्ट प्रिंट मेकिंग में इतना ज़्यादा बन गया था कि आई वॉज फुल्ली इनटू इट. मतलब बट यू आल्सो आई मीन दिस इज गुड ओनली बिकॉज़ नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग 3 डिफरेंट फील्ड्स. पेंटिंग तो आप करते ही थे. हाँ पेंटिंग आई वाज ऑलरेडी डूइंग एंड उसमें आपको कुछ एकदम नया भी नहीं बताने वाला था कोई. ठीक है, यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड अ न्यू मे बी मीडियम थोड़ा बहुत एंड टेक्निक तो बेसिक सेम ही रहती है पेंटिंग में. प्रिंट मेकिंग इज अ वेरी technically heavy field, so there are so many new mediums like for example please for example basic is woodcut and lino cut, right? So they are the most basic print making techniques. Then we have a little advanced technique like lithography, which is a printing using stone. Then one of my favorites which is etching and aqua tint, one of the best print making things you can do. So it's a much more technical and you can like I love to do realistic work, so etching and aqua tint is the one just say medium you can do like wonderful realism, crazy realism and hyper realism. Yeah, you can achieve that in that technique. No, and you studied in a government college as well. So I mean over there I just want to get into the politics of it, because as you rightly said कि 3 वो होते हैं बैचेस होते हैं जिसके अंडर दे टेक पीपल. बहुत लोग डोनेशन से भी आते हैं वहाँ पे. नहीं, I don't think so. I really don't think so. मतलब यार आई थिंक एवरी लाइक जब बैच आता है ना फर्स्ट ईयर में everyone is so enthusiastic and सबका होता है ना यार I'll do something and वो eventually कम हो जाता है. फर्स्ट ईयर में सब अच्छा कर रहे होते हैं, 4th ईयर तक जाते रहते हैं, वो गिने चुने 2-3 ही होते हैं क्लास में. हर क्लास में 2-3 ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ दे आर डूइंग, दे आर जस्ट कम फॉर द डिग्री, फॉर द सेक ऑफ डिग्री, राइट? मतलब सब उनके लिए आते हैं मैक्सिमम. सो वो तो आपको अंदर से होता है इफ यू रियली वांट टू परस्यू इट एंड ऑल. सो एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन भी है एकम दैट फाइन आर्ट एंड आई मीन द एजुकेशन ऑफ फाइन आर्ट इज मोर फॉर विमेन. Like in your colleges also, did you have a dominance of more girls over there versus boys? नहीं, it was equal. हाँ, मतलब एक सोच है कि हाँ लड़की है तो ये चलो इसको फाइन आर्ट पढ़ा दो. अगर आप इंडियन आर्टिस्ट देखोगे you will find mostly male dominating. Yeah, I mean 100 artists that I have, they all for the men. But that is not the point. Yeah. The point being, because this is a misconception and this is a theory in people's mind कि हाँ art is more to do with women. How to? I mean, you're of course a living example and you're doing very well. But you think there's a difference in the thinking or the process making when you see a difference in gender making a particular piece? Yeah, मतलब obviously women will represent thoughts like that. उनके थोड़े their subjects will be obviously different from a male subject. जो male एक subjects बनाएगा जो women बनाएंगे they'll have a different thinking and all. So yeah, it's a दोनों की अपनी अपनी representation I think. I feel like so it's equally important and you see that in the works of people like अगर I'm print making से ही होता है you should see works of Anupam Sood. Yeah, of course. So है ना. What was the biggest culture shock that you got when you went to that when you went into college? Art college. Yeah. बिगेस्ट शॉक आई मीन जब तक आप आई थिंक आर्ट कॉलेज का नहीं वो हर अच्छे कॉलेज का या फिर आप कह लो लाइक आर्ट कॉलेज सच अ लिमिटेड सीट स्पेशली आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया हैव लाइक 10 सीट्स है ना हर ईच डिपार्टमेंट. सो इट्स सो लाइक सच अ कॉम्पिटिशन टू गेट इन. सो जब आप अंदर जाते हो ना तो बाहर तक तो इट्स फील सो ह्यूज एंड यार इट्स समथिंग क्रेजी. एडमिशन नहीं हो रहा ऊपर से आपका है ना, इतना मुश्किल से एडमिशन होता है. देन व्हेन यू गेट इनटू देन एक बार तो जाके शॉक लगता है इतना भी कुछ खास नहीं है जितना है. बट या इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स आई थिंक. बट आई हैव फेल्ट आफ्टर 4 years देयर इज की it depends on you how you are using that how you are using that space and time है ना. अगर आप अच्छे से उन 4 सालों को यूटिलाइज कर रहे हो you will get
good things out of it only. नहीं, but what is the benefit that you think that you got? Because आज की डेट में ना there are a lot of self-proclaimed artists as well and self-taught artists as well जो उठ के आ जाते हैं Instagram पे reels post कर nothing against them. Yeah. But ये एक होता है because I feel that you should get formal education to get better, not for any other reason. Yeah, I'll say it like this. जैसे जब मैं I was already doing quite well. मतलब मेरा my hand was also quite good. मैं अच्छा काम कर रहा था before in getting into the art college. So I had it कि हाँ यार डिग्री तो चाहिए ही चाहिए मेरे को किसी चीज़ में तो करनी है ना. So why not BFA only? ठीक है, फील्ड से भी रिलेटेड है. So that was the point. So I had a डिग्री वाला था मेरे भी दिमाग में कि फॉर द सेक ऑफ डिग्री था, है ना. बट जब मैं गया ना तो और मतलब कि मेरी लाइक माई सिस्टर ऑल्सो तो ठीक है यार तू जा रहा है ना तो कि तू इतना वो मतलब कि जैसे प्रिंट मेकिंग भी मिला था. आई वाज लाइक यार प्रिंट मेकिंग मिल गया तो फिर शी वाज लाइक ठीक है तो तूने 2-3 साल के लिए जाना है. यू फोकस ऑन योर वर्क. तू डिग्री के लिए जा रहा है वहाँ पे उतना ही काम करियो. बट व्हेन आई गेट इनटू इट इट्स मच मोर देन डिग्री यार. आई मीन when you are working in like 50 people in same field doing same work, we explore so much. दिमाग वहीं पे दौड़ता है. Yeah, वहीं मतलब कि तुम्हें कितना like I like to do realistic, someone likes to do abstract, someone likes to do something different. Yeah, सबके subject different होते हैं, सबकी technique different होती है. So you see so much, you get exposed to art so much जो कि अब I think घर पे बैठ के नहीं हो सकते. मतलब मैं उससे पहले वीडियोस देखी हो. Yeah, आपको जो एक art college, art school में जो exposure मिलता है it's much more. It's really worth it. Yeah, but you've seen both sides of the coin. मतलब what is the major difference? Like if I talk about specifics, आपने ऐसी क्या चीज़ सीखी BFA के वक्त जो I think एक artist को आज की डेट पे self proclaimed artist को नहीं पता होएगा? I think it's probably the way of मतलब कि अभी आप I'll say कि सोचने का तरीका. Art colleges kind of changes you. अभी it also depends on आपका डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है. तो एंड कि फॉर एग्जाम्पल हाउ शुड आई से कि जैसे अभी जो बाहर द वन हु इज सेल्फ टॉट आर्टिस्ट दे विल लाइक यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. अभी यूट्यूब पे सब मीडियम्स पढ़े. आई ऑल्सो मेक मेरी ज़्यादातर वीडियोज मीडियम्स एंड टेक्निक्स पर ही होती है. सो दैट इज़ लाइक ईजीली एक्सेसिबल एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम एवरीवेयर. कोर्सेज हैं, है ना, टीचर्स हैं ऑफलाइन इतने सारे. बट आर्ट कॉलेज if you get good guidance under good professor, then it tells you the way of thinking. That is I think which I learned कि तुम्हें अपने काम के बारे में कैसे सोचना है, कि आप क्या बनाना चाहते हो, आपका एक थीम एंड ऑल. वो एक आर्ट कॉलेज आपको एक शेप दे देता है. आपको एक इंसिडेंस याद है कोई अपने प्रोफेसर के साथ कि उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया हो जो लाइक आई विल से कि अरे यार बिफोर लाइक मतलब आर्ट जैसे आई यूज्ड टू जस्ट डू पोर्ट्रेट्स ऑफ एक्टर्स. ठीक है, मैं कभी किसी का फैन आर्ट ड्राइंग बना दिया, कभी किसी का, सब बनाते हैं ना, कॉपी वर्क बेसिकली एंड ट्राई टू कॉपी सम आर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो बट फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं देन योर प्रोफेसर लाइक ओके मेक समथिंग ओरिजिनल नाउ. सो दैट ओरिजिनल एस्पेक्ट इज समथिंग विच एन आर्ट कॉलेज गिव्स यू रियली वेल. कि आपको एक अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी मिलती है काम करने की. लाइक मैंने लाइक जब स्टार्ट करा था कॉलेज तो मेरे प्रिंट मेकिंग में काम में आई वॉज ट्राइंग दैट ओनली. आई ट्राई टू कॉपी समवन, है ना, कि किसी का पोर्ट्रेट बना दिया. बट फिर इवेंचुअली ठीक है, तब तो ऑब्वियसली आई गॉट क्रिटिसाइज कि ये क्यों है ना एंड ऑल. Like do something new na, try to make something original also now. So then I started exploring myself only. मैंने कहा यार मैं क्या बनाऊँ, and I started doing one. I did a portrait of mine only in a woodcut. ठीक है, या तो फिर 1 करा, 2 करे, 3 करे. I am telling about second year in printmaking, and I almost did 5 portraits in a single woodcut technique, black and white woodcut technique. Wow. Then I like exhibited in around annual show. It got a really good response. Everyone liked it. ठीक है. Then third year से I was all into self identity and मैंने सिर्फ अपने portraits and अपने अराउंड की stories को जो मेरे को दिख रही थी I captured that. and मैंने फिर print making में अगले 2-2.5 साल I just did self portraits around me and all. Wow. So that is something which art. No, but you know this is actually a very good question which I have. कि I mean a lot of artists struggle to find that originality in their artworks. Yeah. कि मैं original artworks कैसे बनाऊँ. कि यार and दूसरी चीज़ बहुत artists को ये भी मतलब they get inspiration from other artists. Yeah. So you think that finding your own original subject is better than taking inspiration, and even if it is तो मैं कैसे वो original subject अपना develop करूँ?
इट हैपन्स विद टाइम, एकदम से तो नहीं होगा, है ना. तो अभी अगर मैं भी एक बार जब मैंने पोर्ट्रेट करा था तो इट वाज फाइन, है ना, एक बार का सब्जेक्ट था. बट वो जब इवेंचुअली रिपीट होता रहा मेरे काम में एंड एवरीवन वाज लाइक हाँ ठीक है, किसने स्टाइल अपना स्टाइल डेवलप कर लेते हो धीरे धीरे. तो इंस्पिरेशन इज़ फाइन. आई थिंक मैं भी वो प्रिंट मेकिंग मैंने बहुत काम देखे और आर्टिस्ट के, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट थिंग्स इन माई वर्क फ्रॉम देयर वर्क. इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी सब्जेक्टिव एज वेल. सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली गुड. बट मैं वो ओरिजिनल काम डेवलप कैसे करूँ? बिकॉज आई थिंक 99.99% स्ट्रगल यही होती है आज के आर्टिस्ट की, कि मैं डिफरेंट चीज़ कैसे, मतलब हाउ डू आई create a different concept? वही, I think you have to experiment a lot first of all, try new things, try new mediums, and then explore a lot of possibilities. क्या जैसे one of the artists is Andrew T. Schiller on YouTube, and he uses this he uses this three मतलब उसका एक काम करने का concept है कि what's possible, what's working, and what if. That what if factor is such a good factor कि आप मतलब कि what's possible जो भी आप कर सकते हो, है ना. एंड वट इफ़ में मतलब कि अब क्या क्या नया क्या लिख रहे हो अपनी तरफ से, आप उसमें क्या कर सकते हो. सो दैट वट इफ फैक्टर इज सच अ गुड. अब जब भी पेंटिंग कर रहे हो ना, आस्क योरसेल्फ वट इफ. सो दैट मैंने बहुत साल पहले देखी थी वो वीडियोस की, एंड इट जस्ट लाइक आज भी लाइक हैड दैट थिंग विद मी, वट इफ. सो दैट इज सच अ गुड स्मॉल पॉइंट एंड सच अ गुड थिंग कि आप पॉसिबिलिटीज. These 3 questions you should ask. या What if, what, और क्या थे? What if, इट वाज अपना व्हाट्स पॉसिबल, ठीक है, व्हाट्स वर्किंग, what's working, and what if. 3 W's of a painting or a fine art work, right? Yeah, true. 3 W's of a painting. 3 W's of a painting. Yeah. Not bad. But because I think 90% of the people, I think they, I won't say fail, because I don't think an artist fails. मतलब मुझे ये terminology बड़ी गंदी लगती है, because you're exploring. But बहुत लोग drop out या pursue करना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वो original मतलब sense ही नहीं मिल रहा होता. अच्छा, number 2, I think there's a very big difference between what an original artwork is and what a commercial artwork is. मैं हर अपने original काम को commercialize नहीं कर सकता. Do you agree? हर ओरिजिनल काम को मैं कमर्शियलाइज नहीं कर सकता. कमर्शियलाइज कि मैं बेच नहीं सकता. श्योर. अभी जैसे यार आई डिड अ लॉट ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट्स. नो, सेल्फ पोर्ट्रेट्स अभी तो दे आर नॉट अ कमर्शियल फॉर मी. जब तक मैं एकदम लाइक फेमस नहीं होता, व्हाई वुड समवन हैंग माय फेस, है ना. मतलब स्टिल आई एम टेलिंग कि अभी स्टार्ट करोगे देन नो वन इज गोइंग टू हैंग योर फोटो इन देयर हाउस ना. सो विद टाइम मे बी, ठीक है, बट वही कुछ काम आप अपने लिए करते हो, कुछ काम आप कमर्शियल एस्पेक्ट से करते हो. वही आई फील लाइक दैट बैलेंस होना चाहिए. हाँ, बैलेंस होना चाहिए. इट शुड बी. अभी यू आल्सो हैव टू सस्टेन द योर आर्ट करियर, देन यू हैव टू बैलेंस with your original and your commercial work. What is one reason why one should not go to an art college? Not go to an art college. मतलब अभी यार I am out of art college and I feel everything was good only in there. तो अभी मेरे को इसे इतना ठीक है. डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ, आई विल से कि आप एकदम ऐसे मत जाना कि द प्रोफेसर विल टीच यू एवरीथिंग. डोंट गो बाय दिस थिंकिंग कि यू विल बी स्पून फेड इन आर्ट कॉलेज. आपको वो पकड़ के ब्रश पकड़ना सिखाएंगे एंड वो पेंटिंग कैसे करनी सिखाएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू, ठीक है. दे विल ऑब्वियसली गिव यू अ डायरेक्शन एंड ऑल विद टाइम, ठीक है. वो भी देखते हैं प्रोफेसर्स ऑल्सो सी यार हु इज वर्किंग एंड हु इज नॉट वर्किंग. दे ऑल्सो टेल अकॉर्डिंग टू, ठीक है. तो दैट इज़ अ वन थिंग. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एंड मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दैट इन माइंड कि एक बार आर्ट कॉलेज चले गए एंड उसके बाद तो दे विल टीच अस एवरीथिंग एंड ऑल. बट ऐसा नहीं होता. यू हैव टू ओनली टीच. उनको आपको ही उनको पकड़ के पूछना पड़ेगा कि सर कैसे एंड ऑल, क्या मतलब कि आपको तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा. ये मत सोचो कि आप अगर जा रहे हो एंड मेहनत करनी आपको आनी चाहिए. आई एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास आर्ट कॉलेज में भी जा रहे हो, यू हैव टू give your day and night. Very well said. You have to give your day and night. The government के जो आर्ट प्रोफेसर्स होते हैं वो बड़े lenient होते हैं, मतलब they approachable कि वो थोड़े depends. I think depends on person to person. नहीं, that is what I had a good experience personally. You had a good experience? Yeah, with my printmaking teachers, I had a really good experience. I enjoyed it. But did you ever? क्योंकि it's also like printmaking is a very technical stuff. मतलब technical field ना, तो उसमें तो प्रोफेसर need to tell you the technique. हमें नहीं पता चलेगा कि etching में कौन सा एसिड यूज़ करना है, कितना strong यूज़ करना है, कैसे उसको हमें etch करवाना है, print करवाना है. So you need a much more guidance compared to I'll say painting, right? है ना. तो प्रिंट मेकिंग तो प्रोफेसर इज मच मोर इन्वॉल्व्ड इन अ प्रिंट मेकिंग फील्ड. सो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद दैट. Is there a gap between what the art colleges teaches you versus what actually happens in the real world? Yeah, you can a little bit तो है. मतलब ऑब्वियसली अब तुम आर्ट कॉलेज से निकलते हो बाहर, देन यू माइट बी जस्ट कि अब क्या,
है ना. तुमको हो सकता है कोई ठीक है यू कैन बी अ टीचर समवेयर और गेट अ प्रोफेसर, है ना, कहीं प्रोफेसर बन जाओ. दैट इज अ नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपको आर्ट कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, इट्स ऑल बुकिश, इट्स ऑल टेक्स्ट बुक लैंग्वेज. बट आई थिंक हिस्ट्री ऑफ आर्ट इज सच अ गुड सब्जेक्ट एंड यू नीड टू स्टडी इट. या व्हाई? डेफिनेटली. अरे इट टेल्स यू सच लाइक art but why do I need to know about art history? It gives you such a insight about how art is thought in the different times ना. कि जैसे अरे यार before I went into art college I was like यार क्या abstract है, क्या बिल्कुल नहीं मेरे को पसंद था. hated it, क्या क्यों इतने महंगे बिक रही हैं. realism is the best thing. I had that in mind. But when I got into art college, when we are मतलब हम बताते हैं different art movements के बारे में, abstract, cubism and all, है ना. तो but फिर जब हम पढ़ा उनके बारे में, then you जब आप उनका इम्पैक्ट देखते हो सोसाइटी पे. अभी क्यूबिज्म था तो उसका जो इम्पैक्ट था उस टाइम पे वॉर वाले एरा में, तो उन आर्ट का जो इम्पैक्ट रहा इतना रेवोल्यूशनाइज करने वाला. सो दैट इज सच अ क्रेजी थिंग यार. आपको इम्पैक्ट पता चलता है उनसे आर्ट का कितना, सोसाइटी पे आर्ट का इम्पैक्ट कितना होता है. तो दैट इज सच अ गुड थिंग. मतलब मुझे आई लव टू वॉच आर्ट हिस्ट्री वीडियोज नाउ. ये ऐसे नहीं लाइक एकदम नहीं डेवलप हुआ मेरा भी, धीरे धीरे 4th ईयर तक जाकर मेरा इंटरेस्ट बना है. आई विल नॉट से कि फर्स्ट ईयर में एकदम आई वाज इनटू आर्ट हिस्ट्री. नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुनता था मैं क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं. आर्ट हिस्ट्री मतलब बहुत बोरिंग भी लगता है. बोरिंग भी है, नो डाउट. एंड द अदर परसेप्शन दैट आई हैव हर्ड इज कि व्हाई डू आई नीड टू नो व्हाट, मतलब दिस इज द अदर परसेप्शन व्हिच आर्टिस्ट से कि बिकॉज मेरी तो खुद की थिंकिंग होनी चाहिए ना. मुझे ये क्यों जानना है कि पिकासो ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया. बट वही ना, वो आपको सोचने का व्हाट इफ वाली पॉसिबिलिटीज आपको आर्ट हिस्ट्री देती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते. अभी वो उसने क्यों अपना पिकासो ने जब ब्रेक करना शुरू करा पेंटिंग, तो दैट वाज हिज व्हाट इफ ना, कि अगर एक पोर्ट्रेट नॉर्मल एंड व्हाट इफ आई ब्रोक इट इनटू different shapes. Yeah, so Ekam, what is, you've been talking about etching. What is etching? Like, I mean, मुझे तो पता ही है, but for the beginners जिसको पता ही नहीं होता कि क्या होता है, and in print making especially, what is etching? So etching is basically done on zinc plate. metal की plate होती है, उसके ऊपर हम नीडल से ऊपर से स्क्रैच करते हैं एंड देन उसको हम एसिड में बाइट कराते हैं. एंड व्हाट एसिड डज इज उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद कर देता है एंड उसको लाइन को डीप कर देता है. एंड देन व्हाट वी डू इज फिलिंग इन दैट एंड उससे प्रिंट निकालते हैं. सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. मतलब आपको एक बार प्लेट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद उससे आप अनलिमिटेड प्रिंट्स निकाल सकते हो. आपका जितना मन करे यू कैन प्रिंट आउट. टाइम टेकिंग एंड बहुत टेक्निकल फील्ड, बट सच अ इंटरेस्टिंग एंड फन बहुत ही फन टेक्निक टू डू. एंड आई मीन हाउ डू यू यूज दिस इन द प्रैक्टिकल लाइफ? मतलब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या? सो बेसिकली यार ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक्स हैं, राइट. दीज आर लाइक 200 years ओल्ड टेक्निक. एंड जब ये आई थी तो देयर वाज नो, उस टाइम पे जो भी बनाना होता यू हैड टू डू इट विद द हैंड. अभी एक पेंटिंग तो एक ही बार बनेगी ना. सो जब मास प्रोडक्शन करना होता था तब भी इन टेक्निक्स का यूज़ होता था. सो दीज आर ऑल ओल्ड टेक्निक्स, है ना. तो वहाँ पर क्या होता था कि अब आपको किसी बुक के लिए कोई इलस्ट्रेशन बनानी है या फिर कुछ एक मल्टीपल आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए कुछ प्रिंट्स, है ना. तो आप तब ये टेक्निक्स डेवलप हुई थी, प्रिंट मेकिंग, वुड कट. क्योंकि आपको एक बार जस्ट एक डाई प्रिपेयर करनी है. एचिंग प्लेट इज लाइक अ डाई. तो वो एक बार आपकी डाई जो प्लेट है वो प्रिपेयर हो गया ना, उससे आप जितने मर्जी प्रिंट निकाल सकते हो. सो या दैट्स द पावर ऑफ प्रिंट मेकिंग, etching. And one more just question coming out of that, like if I want to get into an art college, you were talking about BFA. Yeah. There are different kinds of subjects. आपने कहा एक applied fine art होता है, एक painting होती है, एक print making होती है, और कितनी तरीके के subjects होते हैं, and how they all different? So applied is all about डिजिटल आर्ट एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट. बेसिकली सारा अप्लाइड में हम कवर कर लेते हैं ना. एंड पेंटिंग, एज वी नो, पेंटिंग ऑयल, वाटर कलर, सारे मीडियम्स में आप काम करते हो. एंड प्रिंट मेकिंग का जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, लिथोग्राफी, एचिंग, एक्वाटेंट एंड स्कल्पचर, डिफरेंट मीडियम. देन दीज वर द सब्जेक्ट इन माई कॉलेज. एंड अभी डिफरेंट कॉलेज में कुछ में मेटल वर्क होता है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट सिरामिक्स हो सकता है, राइट. सो देर आर मच मोर सब्जेक्ट एज वेल. बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो. एंड नहीं, बट इवन इन आर्ट कॉलेजेस ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन मीडियम्स जो पढ़ाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मतलब एक्रेलिक, मतलब इफ आई टॉक अबाउट पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन कैनवस हो गया, ऑयल ऑन कैनवस हो गया, एक्रेलिक ऑन पेपर हो गया, वाटर कलर ऑन पेपर. मतलब देयर आर सर्टेन आर्ट फॉर्म्स. बट अगर इफ आई एम डेवलपिंग माय ओन मीडियम, like do they help you out in for example उस दिन मैंने देखा था thread artwork. Like right. you इतना famous हो गया कि you use threads to make you know a single painting or an artwork. So is this a medium which would be welcomed in a government college?
सिखाएंगे वो? आई डोंट थिंक सो. वहाँ पे अब दे स्टिक टू अ सर्टेन मीडियम. अब वहाँ पे यार आर्ट कॉलेज में देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, दे हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू दैट. तो वो आपको एकदम ऐसे एकदम ही कुछ भी नया तो नहीं सिखाने वाले. उनको एक सर्टेन सिलेबस मिल रखा है, दे विल स्टिक टू दैट सिलेबस, वही, और उतना ही वो पढ़ाएंगे तो जितना फिर एक स्टूडेंट कैसे एक्सप्लोर करे, यही तो मैं पूछ रहा था. मतलब रिस्ट्रिक्शन इतनी है इंडियन आर्ट स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में. फिर इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इफ आई वांट टू गेट आउट ऑफ माय बबल, हाउ डू आई गेट आउट माय बबल? उसके लिए तो आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा एट द एंड. आई विल से दैट ओनली. जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो. ठीक है. वन थिंग आई लाइक टू से कि आर्ट कॉलेज में जब जा रहे हो ना, कभी भी जितना आर्ट कॉलेज करा रहे हैं ना उतने पे मत रहना. आपको अलग से करना पड़ेगा अपना कुछ ना कुछ. ठीक है. आप अगर आर्ट कॉलेज में आपको एक सर्टन मीडियम एंड टेक्निक सिखा रहे हैं ना, आप उतनी ना करो. आप उससे आगे देखो कि उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ. दैट इज़ द वन थिंग. ठीक है. जितना आर्ट कॉलेज कराएगा, डू मोर देन दैट ओनली. जितना आपको कराया जा रहा है ना, इट इज़ वेरी लिमिटेड एंड वो सब कर रहे हैं, आपकी क्लास में सब कर रहे होंगे. आप उससे एक्स्ट्रा क्या करते हो, दैट इज़ वट मेक्स द डिफरेंस. अभी मैं आर्ट कॉलेज में था तो प्रिंट मेकिंग चल रहा था, पेंटिंग भी चल रहा था साथ साथ में, फोटोग्राफी भी चल रहा था, वीडियोग्राफी भी चलता, रील्स भी चल रही थी, शूट बट फिर उसका डायरेक्शन आपको कौन देता है? कैसे? मतलब इफ यू आर एक्सप्लोरिंग अदर वो, सो देन यू हैव योर YouTube. वही तो उसका आपको डायरेक्शन नहीं मिलने वाला. वो आपको उसका डायरेक्शन ढूंढना. अगर उसका भी डायरेक्शन मिल गया देन तो वो तो फिर वही टेक्निक्स का मिल ही रहना कॉलेज में. तो वो आपको खुद देखना है, उसकी डायरेक्शन आपको खुद निकालनी है कि और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा, और आई कैन उसमें मैं अपनी कैसे ढूंढ सकता हूँ चीज़, अपना क्या फेवरेट मीडियम ढूंढ सकता हूँ एंड अपनी क्या टेक्निक ढूंढ सकता हूँ. वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा. एंड आई विल से कि आपको अपने उसमें और ज़्यादा निकलो यार. लेट्स से इट कि जब आप आर्ट कॉलेज में होते हो, जितना आर्ट कॉलेज आपको सिखा रहा है ना, आप उससे ज़्यादा करो. आपको कॉलेज में 1 2 3 सिखा रहे हैं ना, आप उसके आगे का सीखो. आप मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ. सो दैट इज़ द वन थिंग. Yeah. But anyway, now enough of art college and the student life. Now Ekam Jyot Singh, we are going to talk about him as an artist. Yeah. Okay, Ekam, I mean, first of all, now talking as a fellow friend, every artist has a low point in his life. Right. I mean, have you ever had that low point कि हाँ मतलब क्योंकि this is not a 9 to 5 job kind of a field. ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये पढ़ लिया, अच्छा मुझे पता है इसके बाद मेरा पाथ क्या है, मैं कंपनी जाऊँगा, सुबह 9 बजे जाऊँगा, 5 बजे आ जाऊँगा, ख़त्म. तो ऐसे एक पॉइंट आते हैं जहाँ पे आपके डाउनर्स होते हैं या बोलते हैं कि यार फक दिस शिट, आई डोंट वांट टू परस्यू आर्ट एनीमोर. होता तो है बट यू हैव टू डू इट. आपको आर्ट इज़ ऑल अबाउट 24/7. आपको हर वक्त आर्ट के बारे में सोचना पड़ता है. मैंने अपने फ़ोन में नोट्स बना रखे हैं जिसमें मैं अपने आइडियाज़ लिखता रहता हूँ. मैं कोई भी पेंटिंग आइडिया आया, मतलब आई यूज्ड टू डू लॉट इन माई कॉलेज कि जो भी मेरे को पेंटिंग करने का मन करता था ना, उसके मैं थीम्स एंड उसके आइडिया को टेक्स्ट में लिख दूंगा अपने फ़ोन में कि मैं क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है इसकी. ठीक है, लिख लिया, अब वो बस स्टोर हो गया ना. अभी उसको मैं बाद में देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें. तो जो भी आपको आइडियाज़ है आपको साथ में नोट डाउन कर लो उनको. उसी टाइम बस नोट्स में खोल दो. हाँ, उसके बाद नोट्स देखो और सोचो कि अब स्केचिंग करनी शुरू करी, फिर देखा कि क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है इस काम में से, उसको विजुअलाइज करा एंड देन एग्जीक्यूट करना इज द मेन थिंग. बट एकम, अब यू बिलीव इन वाहेगुरु, यू बिलीव अ लॉट इन गॉड एज वेल. And how does devotion help you in art? Like how it can help you focus. I think focus करने में बहुत मदद करती है. अगर आपका your mind should be clear. मैंने देखा आपने इतनी पेंटिंग्स हरमंदिर साहब की भी बनाई हुई है. lot of. एक तो इसलिए भी होएगा क्योंकि वो हर कोई बुआ चाचा चाची बोलता है, नहीं बेटा एक नहीं, पर उनके लिए मैं नहीं बनाता. I never paint for my relatives. नहीं, I do it for myself. I only paint for the president. वो उस पे भी आएंगे. हाँ, I do paint for the president. नहीं, but yeah. So how much does devotion help with an art form? I'll say कि आपको वो एक devotion helps you give you a direction maybe कि जब भी like if you are maybe feeling low, अभी I think it's very subjective for everyone. हाँ, मैं तो आपका experience पूछ रहा हूँ. हाँ, तो maybe if I'm feeling low, I listen to something good and related to Gurbani, right? And so it might help me, है ना? So that is the one thing. अभी जैसे when I'm painting Golden Temple, I do listen a lot of Gurbani at that time. ठीक है, so it obviously helps me better to focus on that particular subject. And it's not an easy subject also, so it can give you a guidance also. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because every human in this world has a certain God. So मतलब आपका ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे आपको लगा है कि हाँ जी वाहिगुरु जी ने मुझे ये इसकी डायरेक्शन दी है when it comes to your career? I think it was आर्ट कॉलेज में जाना was also a blessing. I'll say it was a blessing for me. It gave me and choosing the art was also a blessing for me. By the
10th तक तो मुझे लगता था आई डू इंजीनियरिंग यार, एंड 11th में आई टुक ह्यूमैनिटीज. So it was like I got a direction. So I'll thank my sister for that. She told me कि तेरे से नहीं होगी इंजीनियरिंग, तू आर्ट कर. So that was a one thing. उसने कहा कि मैंने कर ली नॉन मेडिकल, मेरे से भी नहीं हुई, तू भी मत करियो, तू ह्यूमैनिटीज़ ले और अपना साथ में कुछ और करियो. एंड आई वाज लाइक हाँ, पढ़ना तो मुझे नहीं है आगे जाके इतना, आई विल डू समथिंग क्रिएटिव. सो दैट वाज इन बैक ऑफ माइंड वेंट. सो या इट्स प्रोबेबली द गॉड्स. बट फैमिली हमेशा से सपोर्टिव इट वाज वेरी सपोर्टिव. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पुत्र इंजीनियर बन. नहीं, दे वर लाइक ठीक है, whatever you want to pursue, we are with you. Do But it. talking And about ये भी है कि जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, I also started doing commission work. And when जब आप अपनी पॉकेट मनी खुद निकालने लग जाते हैं, and then parents are also like ठीक है, कर रहा है, करने दो. उनको सिर्फ पैसा देखना होता है. नहीं ये भी नहीं, बट आप खुश भी हो यार, जौन से जिस काम में आपको पैसे भी मिल रहा है, आप खुश भी हो, देन और क्या चाहिए. उससे बेटर कुछ नहीं. या और क्या चाहिए वही. Do you remember the first commission work you did? Yeah, I remember. कितने पैसे लगे थे? commission work. कितना? 1,000 rupees. Oh very nice. किस मतलब कोई it was one of my school friend. So I think उसने अपनी गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट बनवाया था. So Please tell me the story. अरे नहीं मतलब I think उस टाइम में I was in 11th or 12th में भी, and उस टाइम मैं पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा करता था, तो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट. सो ही मैसेज मी कि ब्रो पोर्ट्रेट बनवाना है एक, एंड आई लाइक हाँ बन जाएगा. मैंने कभी बनाया नहीं था किसी का पैसे लेके पोर्ट्रेट तब तक. सो आई थॉट हाँ भाई बन जाएगा, एंड ये इतने चार्जेस होंगे एंड इतने दिन में बन जाएगा. एंड ही सेंड मी द फोटो, आई मेड इट. एंड अभी मेरे को जब पहली बार बनाया था, मेरे को श्योर भी नहीं था यार अच्छा बना या नहीं बना, क्योंकि आपको नहीं एक्सपेक्ट होता ना आपका वो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है. सो व्हेन आई प्रेजेंटेड हिम वाज लाइक ब्रो बहुत ही क्रेजी, मजा आ गया. एंड आई वाज लाइक या ठीक है, बेस्ट काइंड ऑफ वैलिडेशन. या नहीं बट आपको हिचकी हुई वो 1000 रुपए मांगने में कि मतलब आपने नहीं मैंने पहले ही आई वाज क्लियर भाई इतने लगेंगे एडवांस. हाँ नहीं एडवांस बाद में लिए थे. वो बाद में रियलाइज होता है आपको कुछ और का, जब तक आपके पैसे कहीं पे बर्बाद नहीं होते ना, कोई नहीं पे करता, फिर ही रियलाइज होता है कि एडवांस लेना चाहिए. ऐसे हुए हैं? हाँ ऑफ कोर्स सबके साथ होते हैं. प्लीज बताओ ना क्या. यार अरे यार they'll send you the photo, they'll say अरे we'll pay you, and you are also like ठीक है I know this person, and maybe you trust the person na, and then eventually you do the painting and you show them and they don't just reply, they ghost you. अच्छा they ghost you also. Yeah it happens, but ये बहुत like this happened with me like एकदम starting में जब मैंने start करा था, एक ही साल हुआ था. then you realize एक दो बार आपके साथ होता है, then you realize कि ऐसा नहीं करने का, and you have but to then what is a path like if you have to design a path for I mean the whole process of you getting a work to you getting that money in your bank account, तो कैसे करना चाहिए? So I think first of all clear the terms. आप क्या उनसे पूछ लो कि what they want and what you will provide them. Keep these things, इतनी terms आप clear रखो कि आप उनको क्या चाहिए ना आप क्या देने वाले हो उनको उस work में, and tell them the price. पहले ही उनको सारी डिटेल्स बता दीजिए, शिपिंग बता दीजिए, फ्रेमिंग बता दीजिए एंड प्राइसिंग बता दीजिए, एंड उसके बाद यू कैन टेक 50% एडवांस एंड 50% आफ्टर द पेंटिंग इज डन. सो बाय दिस वे यू आर ऑल्सो सेफ एंड द क्लाइंट ऑल्सो फील सेफ कि ठीक है आई विल पे द रेस्ट आफ्टर द पेंटिंग इज फिनिश. सो आई फाइंड दिस the best way to deal with the clients कि आप 50% एडवांस ले रहे हैं 50% आफ्टर द पेंटिंग. बट एक कहा भी जाता है कम कि आर्टिस्ट को ना बेचना नहीं आता खुद को. लाइक दे नॉट गुड सेल्समैन, दे क्रिएटिव पीपल, वी ऑल आर क्रिएटिव पीपल. सो हाउ इजी हाउ डिफिकल्ट इज इट टू प्राइस योर पेंटिंग? ये सच तो है, आर्टिस्ट को बेचना तो नहीं आता. बट हाँ मतलब आप फिगर आउट धीरे धीरे ही करते हो. ये भी अभी आर्ट कॉलेज आपको नहीं सिखाता ऑब्वियसली कि सेल कैसे करना है आर्ट को, एंड किस टाइप का आर्ट कमर्शियल है एंड क्या विच इज़ सेलेबल एंड क्या चल रहा है करेंटली. सो दैट्स वे एवरीवन से कि कंटेम्प्रेरी देखो, कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है, बिकॉज एवरीवन लाइक्स टू सी कि हाँ कंटेम्प्रेरी के नाम पे एवरीवन बायज इट कि चलो जी कंटेम्प्रेरी थीम. मुझे तो लगता है कंटेम्प्रेरी जो टर्मिनोलॉजी भी है इतनी अब्यूज हो गई है. वेरी ट्रू. आई आल्सो डोंट बिलीव इट. हर कोई हाँ जी मुझे ये कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है, कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन भी नहीं पता. कंटेम्प्रेरी कुछ नहीं होता मेरे साथ से. ठीक है आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करो. ठीक है आपका आर्ट इज़ योर ओरिजिनल आर्ट जो कर रहे हो, एंड स्टिक टू दैट. मैं क्यों अपने आप में कुछ ऐड करूं जो कि कंटेम्प्रेरी चल रहा है? Why would I want to add that? नहीं मैं तो नहीं इतना करता. I'll stick to the themes I like and I like to do what I feel like. Exactly. But coming back to the question, how do you price a painting? How would you price a painting? So there are few things you'll need to know. First of all आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो, आप उस पर मटीरियल्स क्या स्पेंड कर रहे हो, है ना, एंड हाउ मच इज़ द साइज ऑफ इट एंड हाउ मच इज़ योर वर्थ एज वेल. अगर अभी मैं आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले किसी को काम देता एंड अगर मैं आज
I have a good following on Instagram and people like my work, people like to buy my work, then obviously I'll value myself more. Of So course. that makes a lot of difference. That validation Yeah. is very important. Yeah. But do you think exhibitions is also the path to become a legitimate artist? Yeah, कि yeah, सिर्फ social definitely. media enough है? नहीं, ये I'll say कि art college, one thing art college give you really well exhibitions. वो आपको घर पे बैठे नहीं मिलेंगी. आप आर्ट कॉलेज में जाओगे आपको एग्जीबिशन की वैल्यू पता चलती है कि आप एग्जिबिट कैसे करते हो काम को एंड एक प्रॉपर वे में गैलरी में कैसे एग्जिबिट करते हो. अभी आर्ट कॉलेज में हमेशा एनुअल शोज होते हैं. आर्ट कॉलेज में हमेशा एनुअल शोज होते हैं. ईयर के एंड में आपका एनुअल शो आता है. आपने जितने भी साल में काम करना होता है, यू डिस्प्ले दैट, पीपल सी दैट, पीपल अप्रिशिएट इट. एंड सिमिलरली जैसे वी हैव ललित कला अकेडमीज है ना, दिल्ली की है, चंडीगढ़ की है, पंजाब की है. सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल. अगर आप आर्ट कॉलेज से होते हो देन यू गेट मच मोर एक्सेस टू दैट. आपको पता चल जाता है वहाँ पे कैसे का काम चलता है एंड क्या क्या काम सिलेक्ट होता है. उनके प्राइजेस भी होते हैं एंड इट्स सच अ गुड वे. लाइक जब मैं आर्ट कॉलेज में नहीं था सो आई हैड नो आइडिया एंड क्लू कि एग्जीबिशंस कैसे होती हैं एंड ऑल. एंड एक बार आप आर्ट कॉलेज एक आपको ये बहुत अच्छी चीज़ देता है, एग्जीबिशंस के बारे में दे टेल यू अ लॉट. मतलब आप जब करते हो तभी आपको पता चलता है. एक प्रॉपर आर्टिस्ट एंड सब आर्टिस्ट होते हैं. बट आपका जब एग्जीबिशन में करते थे कोई काम सेल हुआ? एग्जीबिशंस में या एक दो बार हुए एंड या एक दो बार हुए हैं, बट ऑब्वियसली मेरे काम वॉज मोर इनटू सेल्फ वर्क, सो वो वाले तो इतने नहीं. एंड बट या इट्स सच अ गुड वे. अभी अब तो इंस्टाग्राम एंड ऑल है to showcase your work, but back then the exhibition was only way you have to present your work na. Exhibition and the gallery method. Yeah, gallery so, method. But I think ये अभी भी एक अच्छा है because art is all about touch and I want to ask you as well, Ekam. Yeah. Art is all about touch and feel. Yeah. जब तक मैं पेंटिंग को या एकम की पेंटिंग को लाइक टच नहीं करूँगा, फील नहीं करूँगा, मैं कैसे खरीद सकता हूँ? How can I spend 1 lakh rupees or 50,000 rupees or 2 lakh rupees? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोशल मीडिया आर्टवर्क एग्जिबिट करने के लिए अच्छा है, बट सेल या सेलिंग करने के लिए डोंट यू थिंक द गैलरी राउट इज बेटर एंड द एग्जीबिशन राउट इज बेटर? आई थिंक अभी एट द करंट टाइम ना इट्स इक्वली 50-50 है वो. ठीक है, आप इंस्टाग्राम आपको यार इतनी ऑडियंस दे रहा है, वर्ल्ड वाइड दे रहा है. अभी आप गैलरी से तो एक पॉइंट तक रीच कर सकते हो जहाँ पे गैलरी सिचुएटेड है, वहीं पर करोगे. बट इंस्टाग्राम पे आपका काम ग्लोबली देख रहे हैं लोग, सो दैट इज़ सच अ गुड थिंग. अभी मैंने आई हैव सेल माई वर्क इन लॉट ऑफ कंट्रीज गए हैं मेरे काम, तो दैट इज़ सच अ बेनिफिट. अभी गैलरीज का अपना फ़ायदा है ना. आप गैलरीज में जो एक फील है आपने का, दैट इज़ सच अ ट्रू. एंड आई स्पीक टू प्रिंट मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अभी प्रिंट मेकिंग के काम में वुड कट होता है, उसका जब उसका जब प्रिंट निकालते हैं उसके पूरा इंप्रेशन दिखता है पेपर के ऊपर. वो आप लाइव ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको कभी भी नहीं दिखेगा इंप्रेशन फोटो के अंदर. तो दैट इज़ सच अ थिंग. स्कल्पचर इज़ अ 3D, तो उसका आप फोटो में क्या मज़ा ले सकते हो. तो गैलरी जब आपका एक एग्जीबिशन एक गैलरी में होता है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो उसका एक अपना वैल्यू है फॉर एन आर्टिस्ट. लोग अपनी सोलो एग्जीबिशंस कराने के लिए तरसते हैं कि मेरे को अपना सोलो शो करना है एंड ऑल. सो या करूँगा मैं भी कभी अपना सोलो शो. नहीं बिल्कुल यहीं पे करेंगे. या श्योर. सो या आई मीन वेरी फन. या एकम, इफ यू वोंट बी परस्यूइंग आर्ट तो क्या कर रहे होते? परस्यूइंग? हाँ, इफ यू वोंट बी परस्यूइंग आर्ट. अच्छा, वोंट बी परस्यूइंग आर्ट. I'll be a craft person जो मे बी गाड़ियाँ मॉडिफाई करता हूँ. मतलब क्रिएटिव फील्ड में जाना. डेफिनेटली अ क्रिएटिव फील्ड, डेफिनेटली अ क्रिएटिव. कोई एक बात बताओ, आर्टिस्ट के लिए, एंड इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आर्टिस्ट के लिए ईगो इम्पोर्टेंट होती है? ईगो थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी तो होनी चाहिए, बट ओवर नहीं होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? आपको अपने आप को यार आर्ट एज आपको अपने काम की तो वैल्यू होनी ही चाहिए और आपको अपने काम पे प्राउड भी होना चाहिए अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो. सो अगर आप ही नहीं अपने काम की वैल्यू दोगे एंड उसको लेके थोड़ा सा हो गया हल्की, थोड़ी ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, बहुत हल्की सी, और अपने काम को लेके यू शुड हैव अ प्राउड फीलिंग एंड यू शुड बी कि हाँ यार मैंने क्रिएट करा है. सो वो होना चाहिए अपने, तभी आप लोग आपकी वैल्यू करेंगे आर्ट को अगर आप करोगे. सो या True. Yeah. And you being, so I mean, another question which I had is because Ekam abhi, how old are you? 24. Exactly. You're just 24. Do you think experience matters more than skill? Because एक ये नया एक phase हुआ है of upcoming artists and budding artists doing so well in the industry. But of course कहीं ना कहीं होता है अच्छा, जो buyers होते हैं और जो viewers होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये तो अभी बच्चा ही है, अभी अपकमिंग आर्टिस्ट है, चाहे उसका आर्टवर्क बहुत अच्छा है, बट वी स्टिल वांट टू बाय अ नेम. सो एक बैकलैश होता है आर्ट इंडस्ट्री में, एंड हाउ डू वी ओवरकम दिस? लाइक इफ यू आर स्मॉल.
if you're young, yeah. या होता तो है ऑब्वियसली. अगर आप मेच्योर आर्टिस्ट में नहीं कंसिडर करते, आप जब भी आप एग्जीबिट भी कर रहे होते हैं गैलरीज के साथ भी, जैसे ललित कला अकेडमी, सो यू आर इनटू स्टूडेंट कैटेगरी. सो वहीं पे फ़र्क हो जाता है. एक प्रोफेशनल आर्ट कैटेगरी होती है, एक स्टूडेंट आर्ट कैटेगरी होती है. सो जब आप स्टूडेंट में होते हो तो आपकी प्राइसिंग भी स्टूडेंट के हिसाब से होती है, एंड जो व्यूअर्स होते हैं वो भी उनको स्टूडेंट कैटेगरी को एक स्टूडेंट लेवल और पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कंपेयर टू अ प्रोफेशनल. बट आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा गैप है? बिकॉज आई डोंट थिंक आर्ट हैज़ एनीथिंग टू डू विद एज. Because I know of a lot of upcoming and budding artists who are doing better than masters and contemporary artists. मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ. So you feel कि it's like equal? हाँ, कि I think art is more of a skill based and an imaginative base and a creative base. Because at the end of the day, अगर मैं बड़ी bluntly बताऊँ, paintings की बात करूँ, end में तो ये product ही है ना. Yeah. It is a storytelling product, but it is a product. सो प्रोडक्ट अगर मेरा बेटर है, चाहे मैं 80 साल का क्यों ना हूँ, बट मेरा 80 साल के बंदे से अच्छा प्रोडक्ट है, एंड इफ आई एम 24, तो फिर मैं क्यों नहीं बेच सकता? एंड सिर्फ इस वजह से क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मैं सिर्फ 24 साल का हूँ. आई थिंक कि जो ये भी यार एक तो एक्सपीरियंस तो है डेफिनेटली. जो 80 साल का है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ही हैड अ रीच एंड उसने लगाए हैं इतने साल, तो उसकी वैल्यू तो होगी ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा. अभी ठीक है, हम इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम के उस जनरेशन में हैं, ठीक है, कि वी कैन डिस्प्ले आवर वर्क ऑन इंस्टाग्राम. बट जिस बंदे ने 80 साल तक कितनी एग्जीबिशन लगाई होगी, आप सोचो अभी तक कितनी गैलरीज के साथ काम करा होगा, तो ऑब्वियसली ही विल गेट एन एक्स्ट्रा एज ऑफ दैट, है ना. तो ही क्या मतलब कि वो भी एक मैटर करता है कि अगर एक सीनियर आर्टिस्ट का कितनी उसका एक एक्सपीरियंस तो मैटर करता है. तो या आई विल से कि जो एक छोटा है, ही माइट बी रियली गुड इन हिज स्किल्स, है ना, बट एक एक्सपीरियंस तो यू गेट विद टाइम ओनली. अभी मैं भी अब अपना एक्सप्लेन करूँगा, तो जो भी मैं 20 साल में काम कर रहा था और अब मैं जो 4 साल बाद काम कर रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ जाता है. बैचलर्स करने से पहले का एक्सपीरियंस एंड बाद का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है चीज़ों में. आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का तरीका, एंड टेक्निकली ऑल्सो यू गेट अ मच मोर मेच्योर. एंड जैसे जैसे आप मेच्योर हो गए, योर आर्ट विल गेन मोर वैल्यू. बट एक ये हर्डल है नाउ, इस हर्डल की वजह से कि हाउ मी बीइंग अ 24-year-old आर्टिस्ट, मैं अपना रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाऊँ? क्योंकि मेरा आर्ट वर्क तो बिक ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर. ये तो मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ. तो अच्छा, क्वेश्चन तो यही था कि मैं हाउ डू आई मेक दैट रेवेन्यू मॉडल? ईदर आई मीन जस्ट परस्यू आर्ट, गो थ्रू द गैलरी राउट, या मैं इंस्टाग्राम के थ्रू करूँ, या मैं आर्ट एज, मतलब क्या So basically, एक तो नहीं होगा. Obviously, you need to try multiple things. ठीक है, अभी जैसे I do sell my artworks as well and also do sell prints as well of my artwork. And आप different mediums में try कर सकते हो. अगर आप different mediums करते हो, then you can reach a multiple level of audience. Different audience का different taste होता है. किसी बार को maybe oil painting पसंद हो, किसी को charcoal पसंद हो. So if you do multiple mediums, you get multiple reach and multiple you're targeting. But do you think as an artist you should do multiple things? Because जैसे before the podcast we were also talking about Raj Shamani, okay? Yeah. Okay, he as a podcaster उसका बड़ा clear है कि he will ask unfiltered questions and he has a niche. Like he only interviews the HNI, even though he explores all different kinds of people in different वो, but वो podcast ही करता है. समझ गए? एक वो गोल होता है. And if एक artist हर medium ही try करने लग गया, तो उस artist की speciality क्या होगी? मैं तो मानता हूँ कि यू शुड ट्राई डिफरेंट मीडियम्स. मेरा तो है कि जितने मीडियम्स ट्राई कर सकते हो करो. आई वर्क विद ऑयल, आई वर्क विद एक्रेलिक, चारकोल, ग्रेफाइट, एयर ब्रशिंग, प्रिंट मेकिंग, नाउ फिल्म मेकिंग. सो आई लव टू एक्सप्लोर. आई थिंक डिफरेंट मीडियम्स गिव यू डिफरेंट एडवांटेज. कि कभी ऑयल में मेरे को उसकी वो जो उसके ड्राई वो है कि वो इतना जल्दी नहीं सूखता, मैं उसके साथ प्ले कर सकता हूँ. एक्रेलिक जल्दी सूखता है, एक्रेलिक की उसकी अपनी एडवांटेज है, टेक्सचर एक्रेलिक का, है ना. चारकोल का एक अपना मज़ा है, एयर ब्रशिंग की एक अपनी स्मूथनेस है ना. प्रिंट मेकिंग के वर्क के एक अपना वो फील है, जो पेपर के ऊपर उसका इंप्रेशन आता है. तो हर मीडियम का एक अपना अपना एक हर मीडियम का अपना USP होता है, है ना. तो वो जब आप जितना ट्राई करोगे यार उतना ज़्यादा सीखोगे, मुझे तो लगता है. सो या गिव इट अ गो. जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो करो. एंड आपने करते 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 नाउ यू गॉट इनटू फिल्म मेकिंग इज वेल. तो यही वही बात होगी ना, इतना सब ट्राई करके नाउ फिल्म मेकिंग फाइनली. सो बेसिकली आई लव टू एक्सप्लोर. ठीक है. एंड एक्सप्लोर करने के लिए मुझे कि यार अभी बैचलर्स करके आई डिड ऑल दी प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स वहाँ पे. एंड आई वांटेड कि यार ठीक है, आई कैन डू मास्टर्स इन प्रिंट मेकिंग ऑल्सो, है ना. एंड आई वाज आल्सो परस्यूइंग इट, बट एंड आई ड्रॉप्ड आउट बिकॉज आई गॉट एडमिशन इनटू फिल्म स्कूल. तो मुझे था कि यार आई रियली वांट टू डू समथिंग न्यू नाउ, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. सो आई गॉट इनटू फिल्म स्कूल एंड वहाँ पे वी आर
learning filmmaking. उसमें I have my specialization in production design, which is into like how your film visually looks and how it feels. So it's all it's like creating a painting only, but with a camera and a frame. So yeah. How do you relate these two subjects? How similar are they they? are like I'll say filmmaking and art is very much मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी हैं, बहुत ऑपोजिट भी हैं पार्ट. ठीक है, Please tell me how. जैसे कि देयर आर सो मैनी मूवीज विच टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पेंटिंग एंड द कलर्स, स्पेशली कलर्स. लाइक इतनी कलर्स, आप जितने कलर हमने पैलेट्स पेंटिंग में देखे वो सब पेंटिंग, जितने हमने पेंटिंग्स में कलर पैलेट देखे वो सब फिल्म में आज यूज़ हो रहे हैं, राइट. एंड सिमिलरली इट्स आर्ट से हमको कंपोजिशंस होगी, आपको फ्रेमिंग होगी, आपको फ्लो हो गया, सब कुछ दिखता है आर्ट में, और वो सारी उन्होंने उठा के फिल्म में यूज़ करनी शुरू कर दी. सो इट्स सो मच कनेक्टेड बट एट द सेम टाइम डिफरेंट ऑल्सो. लाइक फिल्म मेकिंग इज सच अ कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड एफर्ट. फिल्म मेकिंग में आपका सबके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबकी स्पेशलाइजेशन होती है, एंड आपको सबका कंसिडर करके काम करना होता है कि वट अ डायरेक्टर वांट, वट अ प्रोडक्शन डिजाइनर वांट. ठीक है, एक्टर को क्या अच्छा लग रहा है, सो आपको कितने सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं. ऑन दी अदर हैंड आर्ट इज़ अ वेरी सोलो शो. या आर्ट, आप अपने आर्ट के साथ सिर्फ खुद होते हो. जब आप पेंटिंग के सामने कर रहे होते हो तो यू आर विद योर पेंटिंग, दैट्स इट. आप सिर्फ अपनी पेंटिंग को फील कर सकते हैं, उसमें बाहर का कोई नहीं इंटरफेरेंस होता कि आपको कोई कुछ कह रहा है, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे. Can you tell me the top 5 things and the top best things of choosing film making versus print making? प्रिंट मेकिंग, हाँ, मतलब what are the advantages? आई विल से आर्ट. नहीं, टॉप 5 मतलब कोई नहीं, मतलब फिल्म मेकिंग वर्सेस फाइन आर्ट. अच्छा, फिल्म मेकिंग वर्सेस फाइन आर्ट में. फिल्म मेकिंग वर्सेस फाइन आर्ट. तो आर्ट में यू आर फर्स्ट, तो यही वाला जो मैंने बोला ना कि ऑन द आर्ट यू आर सोलो. ठीक है, आप अपनी आर्ट होते हो और आपकी पेंटिंग होती है, आप होते हो, दैट्स इट, कोई नहीं आएगा आगे से, है ना. फिल्म मेकिंग इज मच मोर कोलैबोरेटिव. अब उसमें फ़ायदा नुकसान दोनों है. यू गेट सो मच इनपुट एंड सो मच, सबका इनपुट होता है. मे बी डायरेक्टर का किसी में अच्छा हो, कलर का मेरे में अच्छा हो, सिनेमाटोग्राफर लेंसिंग एंड फ्रेमिंग बताए, लाइटिंग बताए. सो अब सबका जब दिमाग आ रहा है तो मे बी कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाए, या फिर मे बी मेस जब हो जाए, खिचड़ी बन जाए, ये भी पॉसिबल है ना. सो इट्स वही है कि इसमें अब आपका फ़ायदा नुकसान दोनों है फिल्म मेकिंग वाले में. आर्ट में इज़ अ वेरी सेफ जोन होता है उसमें आपका. आप वो आपकी आर्ट है, जो भी आउटपुट आएगा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आर्ट, है ना. एंड मोर आई विल से कि सेकंड, आई विल से कि ठीक है, फिल्म मेकिंग इज़ अ मच मोर ग्रोइंग फील्ड कंपेयर टू आर्ट, ऑब्वियसली, है ना. व्हाई डू यू से सो? अरे इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री फिल्म मेकिंग. ठीक है, कंपेयर टू आर्ट इट्स, ठीक है, अभी इतना लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप, ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे अभी OTT एंड ऑल्सो एवरीवेयर इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, है ना, चलता रहता है हर जगह. सो एंड जबकि आर्ट इज़ अ मच मोर ट्रेडिशनल वे अराउंड, है ना. एंड आई विल से कि सॉरी, नो वरीज. एंड आर्ट के अंदर यू आर या दीज आर द मेन 2 एस्पेक्ट. ठीक है, मे बी पैसे का हो सकता है बट इट्स अगेन सब्जेक्टिव. अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो आप आर्ट में भी फाइनेंशियली गुड कर सकते हो एंड फिल्म मेकिंग में भी कर सकते हो. अगर आपका काम ही बेकार है फिर आर्ट में क्या, फिल्म मेकिंग में क्या, है ना. नहीं, बट इस पॉइंट को मैं बहुत पकड़ने वाला हूँ. Why do you think that art is not a growing field? Because if I talk about artworks, I'm not saying growing, I'm saying but still filmmaking is a much more larger field compared to art field. Yeah, I mean, my opinion on this is, I mean, why am I saying that? Maybe because I'm biased, of course. Yeah. Number 2, I think there are a lot of different. I sit at the gallery. तो मेरे यहाँ पे तो हर रोज एक नया आर्टिस्ट या एक नया आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है. Like that, when I was abroad as well, there were so many art forms which we haven't seen. Yeah. Now, for example, in India, graffiti is also Yeah. picking up. We did a podcast with some guy. Graffiti is also a picking up art form जो कभी था नहीं. ठीक है, हाइपर रियलिज्म तो अभी मतलब 2-3 साल पहले आया. ठीक है, so there are a lot of art forms. अच्छा, मतलब मिक्स मीडिया आर्ट, प्लांट बेस्ड आर्ट. उसे मैंने एक वो देखा है where this artist, I forgot her name, she makes her artworks through plants, living plants. उसके पीछे उसने पानी लगाया हुआ है और वो ड्रिप होता रहता है और वो प्लांट्स ग्रो करके एक आर्ट फॉर्म क्रिएट कर देते हैं. सो आई थिंक ग्रोइंग वाइज ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, बट हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट tangent you're going on कि मतलब it's a vast field. Filmmaking is a very vast field, but ठीक है. But why do you think that art is not a growing field? I'll not say art is not growing, but ठीक है, अभी ऐसे तो यार फाइन आर्ट इज एवरीवेयर. मतलब फिल्म मेकिंग में भी इट्स प्लेज अ इक्वल रोल. फाइन आर्ट का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, अभी फाइन आर्ट ना होता तो फिल्म मेकिंग भी ना होता. फिल्म मेकिंग सच अ बिग एस्पेक्ट ऑफ. मुझे बस ये लगता है कि फिल्म मेकिंग अब मोर एक्सेसिबल हो गई है. Yeah. Because thanks to your ये
ये आप हर एक स्टूडेंट भी या हर एक 16 साल का बच्चा भी आज की डेट में अपने आप को एक मतलब फिल्म मेकर समझता है। एप्पल ने एक कॉम्पिटिशन किया था जब उन्होंने ना अपना iPhone 16 या 17 लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने एप्पल फोटोग्राफी का किया था। पता है कितने they shoot their show अपना Apple events on iPhone only ना। पता है कितने उनके पास वो इनपुट्स आए थे? मोर देन 7 लाख, मतलब पता नहीं कितने 7 मिलियन या 7 बिलियन एप्लीकेंट्स और वो आए थे जिन्होंने सिर्फ आईफोन से शूट करके अपना वो दिया था। सो या दिस इज समथिंग आई बिलीव। बट एनीवे, हाउ नाउ टॉकिंग अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन, अभी आपने फिल्म मेकिंग का भी कहा, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर्मल एजुकेशन इन बोथ दीज फील्ड्स? जैसा भी मैंने कहा ना कि इतना एक्सेसिबल है कि कोई भी उठ के आज की डेट में कैमरामैन बन जाता है, DOP बन जाता है, ये एक मिथ है। तो कितना ये सच बात है एंड कितना इम्पोर्टेंट है फॉर्मल एजुकेशन उसके लिए? बेसिक्स है आई थिंक। अगर आप बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। अभी कोई उठ के एकदम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दे उसको बेसिक ही नहीं स्केचिंग है बताओ, देन इट डजंट मेक सेंस। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते थे पुराने आर्टिस्ट, दे हैड सच उन सब ने पहले रियलिस्टिक काम कर रखा था। सो इट्स अ प्रोसेस and it's a journey, it evolves with time. So yeah, it's मतलब part of the process। आपको बेसिक्स तो सीखने ज़रूरी है। तो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो then go for it, I'll say get the basics right, get the principles right। एक बार बेसिक समझ लिए then। बट जैसे फिल्म मेकिंग में भी आपने ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने क्या ऐसा चीज़ सीखा जो आपको कभी पता ही नहीं था? कोई ऐसे थी चीज़ें? या अभी प्रोडक्शन डिज़ाइन ऑल्सो आई डिडंट हैड आइडिया 2 years बैक क्या होता था, जिसका आई एम डूइंग नाउ स्पेशलाइजेशन। सो प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ बेसिकली द हाउ योर फिल्म लुक्स एंड फील्स, है ना। तो एक सिर्फ एक पर्सन की क्या जॉब है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर हु इज़ द आर्टिस्ट बिहाइंड द फिल्म, उसका क्या काम होता है कि हाउ योर फिल्म फील्स एंड विजुअली लुक। वो सोचेगा कि एक मेरा सीन के अंदर कलर्स कैसे होंगे, लाइटिंग कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसी होगी, उसका आर्टिस्ट का मेकअप कैसा होगा, ठीक है, वो आर्टिस्ट खड़ेगा कहाँ पे, मेरी कंपोजिशन कैसी होगी। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, सो प्रोडक्शन डिज़ाइनर इज़ लाइक अ पेंटर बट विद द फ्रेम। उसको फ्रेम सेट करना होता है, फ्रेम को ब्यूटीफाई करना होता है, नॉट जस्ट एस्थेटिकली, उसका साइकोलॉजिकली भी मीनिंग क्या होता है फ्रेम का, ठीक है। तो विजुअल्स के थ्रू एंड सारा प्ले करना है। एक अगर आप उसमें एक उसके अंदर कुछ एक पीछे कपड़ा टांगा हुआ है, उसका भी कुछ अगर मीनिंग है जब, तो दैट्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वाओ, या कभी सोचा नहीं हमने तो। हाँ, मतलब ऐसे प्रोडक्शन डिज़ाइनर मैंने भी नहीं, लाइक लास्ट 6 months ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरे को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पता चल रही है कि जब हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको बहुत ओवर थिंक करना होता है। अगर एक फिल्म के अंदर एक सर्टन टाइप का सोफ़ा है तो उसके पीछे भी उन्होंने कितना सोचा होता है कि ऐसे का फर्नीचर क्यों आएगा इस फिल्म में। वो उसकी सिर्फ एक आर्टिस्ट का सिर्फ अगर एक करेक्टर है, उसका घर है, वो सिर्फ घर उसका घर नहीं है, वो उसके बारे में सब कुछ बता सकता है आपको। अगर आप उस फ्रेम को पॉज करके सिर्फ घर को ऑब्जर्व करोगे ना, आपको उसके बारे में सब पता चलने लग जाएगा। वो कैसे का रहता है, उसका लाइफस्टाइल कैसे का है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सिर्फ आप एक सिंगल फ्रेम से बता सकते हो उसके घर के। सो दैट इज द लाइक अ डिटेल अ प्रोडक्शन डिजाइनर एड्स टू अ फिल्म। And this is what you've been pursuing? Yeah, I am exploring it basically. So there is scope for this specific field in India as well? Yeah, every film has a production designer. We might know it's a little underappreciated job, but every film that is, जितनी भी आप crazy looking film उठा लो, कोई भी Barbie, Oppenheimer, they all have a great production designer. अभी क्रिस्टोफर नोलान है, उसकी मूवी में every production design का काम इतना detailed होता है ना, it's all manual. वो अब VFX बहुत मिनिमम यूज़ करता है. He is into I'll make these things everything manual only. He does the explosions manually. He makes miniatures. अभी पुरानी मूवीज में miniature यूज़ होते थे. Miniatures are like large size sets basically models. तो जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर में जो हॉगवर्ट्स के सीन है, हॉगवर्ट्स इज अ रियल बिल्डिंग है, कैसल है, बट उसके कितने सारे जो उसके डिस्ट्रक्शन के शॉट्स हैं और ड्रोन शॉट्स हैं, दे हैव बीन डन इन अ मिनिएचर सेट. वो छोटा सा कमरे में उन्होंने लाइक बड़ा सा मॉडल बना रखा है एंड वो उसके शॉट्स हैं एंड वो उसको मूवी में इतना सीमलेसली मैच होता है एंड इट्स अ प्रॉपर डिटेल मिनिएचर स्केल टू स्केल. अगर एक बिल्डिंग इतनी लाइक 10 फीट की है तो उसका वो 1 फीट का मॉडल एकदम एक्यूरेट होएगा. उसकी विंडोज, उसके दरवाजे, उसकी ईंटें, एक एक चीज़ एक्यूरेट होगी. सो दैट इज़ एंड ही लाइक नोलान यूजेज इट एवरीवेयर इन हिज ओपनहाइमर. जैसे हर जगह उसने मिनिएचर्स का यूज़ करा था, बहुत है उस मूवी में. सो इट्स सच लाइक दो अभी VFX आ गया, इट हैज़ रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द मिनिएचर वर्क्स करंटली, है ना. बट स्टिल जो अभी भी लोग यूज़ करते हैं मिनिएचर अपने फिल्म्स में, इट्स सच. अभी हमारा मॉड्यूल था लास्ट अभी जैसे पहले सेमेस्टर में, वी हैड टू मेक अ मिनिएचर सेट मॉडल छोटा सा. सो वी हैड टू कैलकुलेट उसका. हमने पहले हमको पहले स्क्रिप्ट मिला.
स्टोरी का। सो स्क्रिप्ट मिला, उस हिसाब से हमने उस घर का डिज़ाइन पहले स्केचिंग करी, किसका घर कैसे का दिखेगा करेक्टर का। सो इट वॉज ऐसे थोड़ा पुअर फैमिली का घर था, वैसे का हमें डिज़ाइन करना था। एंड उसके बाद वी हैड टू लाइक ऐड ईच एंड एवरीथिंग। इसकी खिड़की कहाँ पे आएगी, लाइट कहाँ से आएगी, इसका बेड कहाँ पे होगा। अच्छा नहीं है कश्मीर में घर है, बेड नहीं होगा, जमीन पे हाँ जमीन पे में भी कारपेट होगा, ठीक है। इसके घर के अंदर की किचन कैसे की होगी, इसके घर के अंदर के कपड़े मतलब कि घर के अंदर का फर्नीचर कैसे का होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। घर का मटेरियल क्या होगा, ये सब हो गया। दिस वाज द प्लानिंग पार्ट एंड देन वी हैड टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ स्मॉल स्केल मॉडल। उसके अंदर भी मतलब जो भी आपका घर का मटेरियल है, यू हैड टू यूज दिस मटेरियल। अभी मैंने कश्मीर का घर डिज़ाइन करा था, सो आई हैड टू यूज अ स्मॉल वुडन लाइक स्टिक्स एंड ऑल, एंड उससे हमें वी हैड टू मेक अ वेरी स्केल्ड आउट एंड प्रॉपर मिनिएचर वर्जन ऑफ दैट हाउस। एंड देन इट वाज सच अमेजिंग एंड interesting process. Everyone enjoyed it. No, this is educative. Like I mean, I wouldn't know. Even a person sitting behind the camera also wouldn't know. But now, nice mention of technology. You said you spoke about VFX and stuff like that. How is technology ruining art or appreciating art and film? Dono. Yeah. Like, do you think it is ruining like it? AI. AI is replacing a lot of VFX also, ठीक है। VFX में you had to do 3D rendering, अगर मैं कल एक modeling, वीडियो देखी और उसका भी नाम मैं फिर से भूल गया, दैट उसने एक वीडियो डाली हुई थी कि मतलब देखो मैं छत पे बनियान में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। उसने पूरा अपना मोनोलॉग शूट किया हुआ है एंड देन ही इज लाइक दिस इज बिफोर एंड देन दिस इज आफ्टर। उसने एक AI यूज किया था, आई एम गेटिंग द नेम ऑफ दैट आल्सो, जहाँ पे सब उसके कपड़े से लेकर उसकी चश्मे से लेकर उसकी घड़ी तक सब AI से ऐड हो गया था। या व्हाट इज बट यू प्लीज कंटिन्यू। सो भाई ना ये होना, इट इज कम्प्लीटली चेंजिंग द इंडस्ट्री ना AI, ठीक है। तो अभी जैसे VFX हो रहा है, अभी VFX करने में आपको 50 घंटे लग रहे हैं, AI में वो 2 प्रॉम्प्ट में भी हो रही हैं चीज़ें। सो इट माइट जस्ट रिप्लेस इट, बट ठीक है जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और कंट्रोल चाहिए होगा वहाँ पे यू विल अगेन स्विच बैक टू VFX। अभी जैसे क्रिस्टोफर नोलन है, ही स्टिल यूज मिनिएचर, उसको नहीं फ़र्क पड़ता AI आ रहा है VFX आ रहा है, उसका अपना प्रोसेस है काम करने का। सो या क्राफ्ट वाला जो काम है वो अपनी जगह पे रहता है, उसके अपनी फील एंड वो रहती है, आई फील की, है ना। सेम बट डोंट यू थिंक इट विल टेक जॉब्स एज वेल? लाइक AI is अच्छा चलो if used correctly it's good only, but don't you think it will ruin? Because I know so many artists, so many अच्छा now you don't need script writers. I don't know of a single script writer who writes scripts. You go on to ChatGPT, this ChatGPT will write scripts. So AI has replaced a lot of jobs. And I mean, even in art, now AI can create any print any image that you like. So do you think that it will replace art? To a certain point. See, AI will exist. You can't deny that. वो exist अपनी जगह पे करेगा एंड आर्ट अपनी जगह पे exist करेगी। I'll say कि जो लोग appreciate करते हैं आर्ट को एंड उसकी क्राफ्ट को, they will buy it, है ना। So मतलब जिन्होंने खरीदना है they will buy it. For example यार जब फोटोग्राफ्स आई थी, राइट, फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई पहली बार, सो जो आर्टिस्ट थे उस टाइम पे दे वर लाइक यार अब तो हमारी जॉब गई, बिकॉज अभी पेंटिंग बनाने में राजा को सामने खड़ना पड़ रहा है 30 घंटे के लिए, वो उसकी लाइव पेंटिंग बना रहा है, वहाँ पे फोटोग्राफ 30 मिनट में डेवलप हो रही है, एक्सपोज हो रही है ना। सो दे वर लाइक यार अब तो वी आर गॉन, है ना। बट देन ऑल्सो फोटोग्राफ एग्जिस्टेड इन इट्स वे एंड पेंटिंग स्टिल एग्जिस्टेड। उसके बाद क्या होगा कि नॉर्मल बंदे फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, उसके बाद रॉयल्स के लिए पेंटिंग ही बन गई, राइट। तो इट विल एग्जिस्ट, AI विल एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन एंड फाइन आर्ट एंड आर्ट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। जो क्राफ्ट की वैल्यू है, पीपल विल डू इट। सो यू आर सेइंग AI will create its own market? Yeah, AI will create, there will be a different art for AI. अभी यार जैसे अभी फॉर एग्जांपल इन डिजाइनिंग, ठीक है, अभी डिजाइनिंग में आप कुछ मैनुअली बना रहे थे एंड उसको आप AI से जनरेट करवा रहे हो, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि वो आपने मैनुअली बनाया कि वो आपने AI से जनरेट करा, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन। बट अगर जहाँ पे आर्ट की बात आती है, फाइन आर्ट की बात आती है, वहाँ पे व्हेन यू नो यार दैट पर्सन में स्पेंट 100 hours ऑन एन पेंटिंग, देन यू वैल्यू दैट इमोशन, यू वैल्यू दैट क्राफ्ट। सो दैट इज द मेन थिंग, वहाँ पर ह्यूमन टच आता है, जो ह्यूमन टच है ना। ह्यूमन टच कैन नेवर, मतलब AI कैन नेवर रिप्लेस द ह्यूमन टच, आई विल से। I agree with that. Anyway, talking about some more fun stuff, I want to know about that president of आपने president के लिए भी बनाई थी. Yeah. So what is that story? So I was in my 4th year back then, 4th year BFA. ठीक है, तो मैं I used to study at Government College of Art, right, Chandigarh, and it's part of Punjab University. And Punjab University पे तब convocation होनी थी हमारे seniors batches की. So the chief guest was President of India. And fantastic. Then it was about to happen in a week, and I got a call from a professor of mine. He recommended my name. They were looking for a
आर्टिस्ट जो ऑयल पे दे वर लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट जो गोल्डन टेम्पल की उनको पेंटिंग बना दे, राइट? यार सो दे मतलब उनको पहले 2-3 और भी लोगों के रेफरेंसेस आए थे, बट थिंग्स डिडंट मैच, टाइम्स डिडंट अलाइंड एंड दे कॉल्ड मी. आई वाज आल्सो लिटिल बिजी. उस टाइम पे चल रही थी, हमारा सेशन चल रहा था, पेपर आने वाले थे या क्या था. तो फिर he called me and said, Ekam, we need a painting of Golden Temple. And I said, हाँ, I can do it. And I sent them the old paintings I did and they really liked it कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ऐसी सी हमें चाहिए, ठीक है. इस टाइम पता था कि you were making for President of India? नहीं, इस टाइम आई डिडंट नो. इस टाइम इतने स्टेक्स हाई नहीं हुए थे, ठीक है. तो फिर मैंने उनको काम भेज दिया, उनको काम भी पसंद आया. मैंने कहा हाँ ठीक है, क्वालिटी है, तुम करते हैं हम, ठीक है. मैंने कहा हाँ ठीक है, कब तक चाहिए? कहते 4-5 दिन में दे दो. मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. अरे मैं तो एक पेंटिंग को 50-100 घंटे लगा देता हूँ बनाने में, महीने चलती है मेरी ऑयल पेंटिंग्स. तो ठीक है, अभी मैंने कलर पेंसिल में पहली बनाई थी जब गोल्डन टेम्पल की ड्राइंग. आई टुक मी लाइक 300 आवर, आई स्टिल रिमेंबर. मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी. इट वॉज इन कोविड. मैंने बहुत डिटेल में और आराम से एक एक डिटेल और एक उसकी जो गोल्डन शाइन है ना, वो कैप्चर करने की कोशिश करी थी उसमें. यार 1 हफ्ते में तो नहीं हो सकता ये. दे वर लाइक नहीं, हमें तो चाहिए 1 हफ्ते में, तो फ्रेम चाहिए हमें तो, ठीक है. आई वाज लाइक यार फ्रेम भी चाहिए उसके ऊपर, चाहिए बिकॉज़ वी हैव टू प्रेजेंट इट. सॉरी. सो दे टोल्ड कि अरे वी हैव टू प्रेजेंट इट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लाइक अच्छा ठीक है, मतलब स्टेक्स तो बहुत हाई हो गए. देन आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन डू ऑयल पेंटिंग. अब ऑयल पेंटिंग यू कैन कवर मच फास्टर, है ना. But oil painting, you acrylic on painting you can do faster. I personally like oil का feel more, right? Oil painting. But वो तो बहुत time लगा. अरे use linseed ना, linseed original and it will dry in 24 hours. ये भी अभी बात करेंगे. So I like to do oil painting more. I have a much better control in oil painting. So I said ठीक है मैम, हो जाएगा. आप मेरे को 4-5 दिन तो दो मेरे को, मैं करता हूँ कोशिश. देन आई स्टार्टेड डूइंग इट. देन 1 रात जागा, 2 रात जागा, 3 रात जागा, जाग रहा हूँ कर रहा हूँ एंड इट वॉज टफ 5 days. बट एट दी एंड मतलब आई कुड हैव केप्ट वर्किंग ऑन इट अभी ना, और हाँ मैं तो अभी हफ्ता और कर लेता. पर मैंने फिर हफ्ते बाद जितनी मतलब मैंने कवर कर ली सारी जितनी बेसिक डिटेल्स दे सकता था और मैं न्यूट में जा सकता है. वेंट इनटू इट एंड आई कंप्लीटेड एंड सेंट देम द फोटो एंड दे वर लाइक या perfect for it. Then I got it framed and then they sent me an invite. अभी I was just a student, तो they only invite the उस पे convocation पे सिर्फ वो आते हैं जिनका हो चुका होता है. तो जो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो इन्वाइटेड होते हैं convocation पे. तो मैं तो अभी पढ़ ही रहा था. they sent me an invite कि उन्होंने कहा ठीक है, you were also तुमको भी हम एक इन्वाइट भेज रहे हैं, तुम भी आ जाना convocation पे. So I also went there. I was sitting there and एक सबसे पहली चीज़ ही वही हुई वहाँ पे. वो आते ही अभी प्रेसिडेंट सिर्फ 20-30 मिनट्स के लिए आई थी. वो पूरी तो convocation नहीं देखेगी. शी जस्ट केम टू द स्टेज, एड्रेस द स्टूडेंट्स. प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? यही द्रौपदी मुर्मू. या शी जस्ट लास्ट 1 year ago की बात है ना. तो शी केम एंड शी टुक इट एंड दे अनाउंस द नेम properly ki this painting has been done by this painting has been done by Ekamjot Singh. He's a student of Government College of Arts. So yeah, I was sitting there with the back with some of the professors of Punjab University and I was like, I did that painting and they were like, crazy you did that with hand. I guess yes sir. With hand? Yeah. Arey, they were not art they were just normal professors of science or maths. Nah, you did it with hand. Yes sir, yes sir, with hand, each and every detail. How beautiful. Yeah. But उस टाइम इतना अच्छा, because this is the kind of validation. That was a really proud feeling. Yeah, this is the kind of validation any artist comes after. उसके लिए पैसे दिए थे? Yeah, charged them. हाँ. Though didn't much, but yeah, it was fine. मतलब they obviously know I'm a student. They'll give me that उस हिसाब से. कितने दिए थे पैसे? Yeah, I got a decent amount. Won't say it, वरना बाकी के clients will say me, अरे you are charging more from us. अभी it was a recommended by my professor ना, so I had to give it. मतलब कि ठीक है यार, अगर वो मेरे को बोल देते ना प्रेसिडेंट को देने, I would have done it for free as well. So yeah, अभी पैसे भी मिल रहे हैं and you are doing it for presidents, double फायदा. But this has been fun, man. I think I can talk for hours and hours. Yeah, same. But ठीक है, time constraints. I want to know a lot of educative stuff as well, because for all the viewers, all my viewers are all students and people who want to know about art. So they want to learn from you कि what is it that you do. So थोड़ा ना, let's do like a rapid fire. I'll just ask you some quick questions and let's see how it goes. So I mean, first things first, what is a Japanese metal pencil and how is it different from a regular pencil? I just made a video recently on it. Yeah. So it's a pencil with a metal, it's a metal and graphite mixture in it. It doesn't
वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती. एक नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल कैन ब्रेक एंड धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है ना. सो दैट इज़ अ मेटल एंड मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट. सो इट्स अ वेरी लाइट पेंसिल लाइक अ 2H पेंसिल. बट या इट कैन कीप गोइंग ऑन अप टू अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स. मतलब आप उससे बहुत देर तक काम कर लोगे एंड वो नहीं घिसेगी. सो दैट्स अ मेटल. उसकी कोई कंपनी होती है स्पेसिफिक? Yeah, this is a Sunstar company. They make it, and yeah, it's a good pencil for sketching under drawings. Really. How good. much is it for? Sorry. How much is it for? It's for I think 500 rupees single pencil. Not Yeah. bad. Okay. How can artists use sandpaper on canvas? Arey, it's the best way. Sandpaper is such a good tool and go to. Every artist should have it because it can help you so much. यार ग्रेफाइट पेंसिल घिसानी हो, शेप करनी हो, कलर पेंसिल घिसानी हो. इनफैक्ट आपके कैनवस पे कोई स्क्रैच आ गया ना, उसको साफ करना है, you can easily use sandpaper. Sandpaper is such a good tool, like literally greatest. And very underrated. Yeah, 10 रुपए में वैल्यू पर मैंने इससे अच्छी नहीं मिल सकती आपको. इनफैक्ट एक बहुत ही प्रो टिप देता हूँ आप लोगों को. अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है ना और अगर पेपर पे कुछ निशान आ जाता है, लाइक पेन का निशान आ गया, आप उस पर बिल्कुल लाइट सैंड पेपर मार के वो पेन का निशान भी हटा सकते हो. Seriously? Yeah, but your paper needs to be good quality. वो प्रिंटिंग वाला 70 GSM नहीं. Your paper need to be like, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई पेपर यूज कर रहे हो एंड उसके ऊपर कुछ पेन का निशान लग जाता है या फिर कुछ पेंसिल नहीं उतर रही, राइट, कुछ गिर गया उसके ऊपर पेंट का निशान, you can use a really fine sandpaper on it. You can easily remove it. Fantastic. Yeah. ये तो नहीं पता था. One more question which I wanted to ask. You were saying that you can dry oil on canvases faster. How? Use a Liquin Original. It's made by Winsor Newton and you can mix it with your oil paints and your paint will dry in 24 hours. कोई उसका आता है स्पेसिफिक ब्रांड है? Yeah, Winsor Newton makes it. अच्छा, Winsor Newton makes it liquid with the name Liquin Original. It's a jelly medium. You mix it with your oils and your paint will dry in like touch dry within a night. आप रात को लगाओगे, सुबह it will feel touch dry. तो oil painter को अंदर से सूखने में it takes months, but touch dry होगी, you can easily ship it and pack it. It's good to go. Good to go. Yeah. And then you can paint over it. Yeah, easily. In fact, you can even use it for glazing, like varnish. अच्छा, you can also. Yeah. A lot of people do varnish with Liquin Original also. It gives it even shine to all the painting. So it's basically a varnish only. Yeah. What are your best tips and tricks for oil painting? Oil painting, okay. 3 best tips and tricks. Use good brushes. ठीक है, brushes makes a lot of difference. Good brushes का definition ये मैं सुन चुका हूँ. Good brushes क्या होती है? जो आप आउटपुट निकालना चाहते हो ना, आप उन ब्रशेस से निकाल सको. अभी मेरे को बहुत ही डिटेल काम करना है ना, सो आई यूज अ रियली लाइनर ब्रश या फिर मिनिएचर ब्रश. उससे मैं एकदम वो काम कर सकता हूँ. मुझे टेक्सचर चाहिए, आई यूज अ फैन ब्रश और आई यूज अ डैमेज ब्रश, पुराना जिसके ब्रिसल्स खराब है, उससे मैं टेक्सचर दे सकता हूँ. सो यू शुड नो विच ब्रश सर्व्स विच पर्पस. या सो दैट इज वन थिंग. है ना. ऑयल के लिए और बताना है, लेट योर ऑयल पेंट्स टू ड्राई. ठीक है, ऑयल पेंट को मतलब कि देयर इज वन टेक्निक इज वेट ऑन वेट, वन इज ट्राई ऑन वेट. ट्राई ड्राई ऑन वेट इफ यू लाइक टू डू डिटेल वर्क. मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेयर लगाता हूँ ना, लेट इट ड्राई एंड देन आई विल कम नेक्स्ट डे एंड आई विल वर्क ऑन इट. यू कैन डू मच मोर डिटेल्स लाइक दैट. ठीक है, वन. एंड देन अदर टिप इज प्रिपेयर योर सरफेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मतलब टेक्सचर बहुत फर्क डालता है आपकी पेंटिंग में. टेक्सचर एड दैट्स 3Dनेस एंड डेप्थनेस टू योर पेंटिंग. अभी अर्लियर आई यूज टू डू रियली फ्लैट पेंटिंग, मतलब बहुत ही पतला पेंट लगाता था. नाउ आई रियली लाइक टू डू टेक्सचर ब्रश स्ट्रोक्स. मोटा उनका जो एक फील होता है, इट हैज हेवीनेस टू योर पेंटिंग एंड टेक्सचर. सो दैट टेक्सचर, मतलब जब भी आप ऑयल पेंटिंग करो, रिमेंबर द टेक्सचर. वन टिप. अनदर लास्ट टिप मतलब. Very nice. Yeah. Okay, now filmmaking. What are the top 5 things one should know before starting to pursue filmmaking? You need to manage a lot of things. ठीक है, first. Second, time management a lot needed. And you have to be very punctual. Like I am a very punctual guy in my art also, in my filmmaking also. I'll be on time and I'll plan my things accordingly, and all my things are on time. So yeah, you have to plan everything. Another is I'll say कि it's both like art and filmmaking both are very heavy and hard working stuff. आपको उसके अंदर बहुत मेहनत करना पड़ेगा. इतनी easily कुछ नहीं मिलेगा. You have to put effort to your technique. You have to put effort to your visuals. बहुत मेहनत बहुत करनी पड़ती है, दोनों में ही. दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे. ठीक है. And what was the question? What are the top 5 things you need to do in filmmaking ना? To pursue filmmaking. And be prepared to दोनों में. And again, fine art and filmmaking में दोनों रातों को जागने के लिए तैयार हो जो. स्लीपलेस नाइट देनी पड़ती है, बहुत में देनी पड़ेगी. अगर आपका शूट रात का है तो देना पड़ेगा. आपको पेंटिंग कल में डिलीवर करनी है, यू हैव टू स्टिक टू इट, है ना. एंड आई विल से कि अच्छे से ऑनेस्टली करो एंड द फाइनल आउटपुट इज़ वर्थ इट. आई विल से इन दी एंड कि अगर आप पेंटिंग जब एक फिनिश करते हो, उसको देख के जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, या फिर फिल्म को व्हेन यू वर्क ऑन योर फिल्म एंड व्हेन फाइनली इट्स स्क्रीन्ड,
that is such a satisfying feeling na. So yeah, that is like process to enjoy करो and wait for that one moment जब वो finish हो जाता है and appreciate that what you have worked on. Well said. Yeah. And I'll add one point, the most important point, patience. Yeah, patience is definitely a वो key. जो short tempered होता है ना वो कर ही नहीं सकते. Yeah, वही I told ना hard working बहुत रहना पड़ेगा आपको दोनों में. Okay, what art supplies should every beginner start with? स्केचिंग एंड बेसिक ग्रेफाइट पेंसिल्स. वो 50 रुपीज़ का 50 रुपीज़ की पेंसिल्स आती है ना, 50 रुपीज़ वाला पेंसिल का डब्बा आता है ना HB से लेके 8B तक. दैट इज़ द ओनली यू नीड, ओनली थिंग यू नीड. वो लेकर उससे आप बेसिक न्यूज़ प्रिंट शीट होती है ना 2 रुपये वाली, उस पे स्टार्ट करो. दैट्स इट. एंड कुछ भी करो. या स्केचिंग करो, लाइव स्केचिंग करो. आई विल से एज अ बिगनर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ डू स्टिल लाइफ. इट्स सच अ अंडररेटेड. Still life. Still life is a very underrated. मैंने जब स्टार्ट करा था आई जस्ट यूज्ड टू डू स्टिल लाइफ. अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट स्टार्ट एंड दे जस्ट स्टार्ट विद पोर्ट्रेट बिकॉज पता है पोर्ट्रेट में तो काम ज़्यादा मिलेगा. दे स्टार्ट विद पोर्ट्रेट एंड पोर्ट्रेट इज नॉट द वे टू स्टार्ट. पोर्ट्रेट्स में इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स. यू कांट ब्रेक थिंग इन द बिगनिंग. बट जबकि स्टिल लाइफ में यू कैन ब्रेक द ऑब्जेक्ट्स इन वेरी सिंपल शेप्स, सर्कल, सिलेंड्रल एंड ऑल. लाइक इट्स सो इजी. Still life में lot of other components are also taken into picture, like lighting, shadows, detail, उसका color mixing, texture also, color mixing. तो बहुत सब components. Still life is like such a underrated and goat, literally goat for sketching. Do still life. उसके अंदर movement भी नहीं होती यार. आप किसी को live बना रहे हो वो हिलेगा, आप confuse हो जाओगे. Still life is all about आप सामने देखो and observe करो. वो patience चाहिए. This still life is I give tip to everyone. अगर start कर रहे हो do still life. Goat. What are the top 5 products every artist should have in their studios? First of all, obviously pencils. I think pencils तो हर medium में, मैं oil painting में भी base drawing pencil से करता हूँ. ठीक है. Then I'll say pencils is the one. Another is definitely keep multiples. I'll say table. Table is a really cool thing. मतलब table में like a table can makes a lot of different. अभी मैं कैसे का टेबल यूज़ करता हूँ? I use a custom built table जो मैंने खुद बनाया है. So it's a angle adjustable table. I can adjust it according to my height and requirement, है ना. It makes a lot of difference. आपकी पेंसिल के स्ट्रोक से लेके आप उस पर कितनी देर तक काम कर सकते हो ना. आपकी बैक नहीं पेन करेगी, आपका आँखें नहीं दर्द होगी अगर आपका टेबल सही हो. Another is lighting. ठीक है, लाइटिंग शुड बी गुड इन योर स्टूडियो. लाइटिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट. अगर आपकी लाइट का कलर नहीं सही, आपके ऑयल पेंटिंग में कलर्स नहीं ठीक आएंगे, आपको कलर्स सही से दिखेंगे ही नहीं. आप उसको डिफरेंट लाइट में देखोगे वो बिल्कुल ही और दिखेंगे. ठीक है. सो अनदर टूल्स यू कैन ऐड टू योर स्टूडियो इज एक पेंसिल बोल दिया, लाइटिंग हो गया, टेबल हो गया, गुड टेबल. देन मोर यू कैन कीप इज मे बी ट्राई न्यू समथिंग जो कोई ना ट्राई करो. जैसे आई एडेड एयर ब्रश टू माई art supply, so that I added it in very beginning only. I think in 2018 only I added airbrush to my. But airbrush controllable होता है. Yeah, airbrush is such a precise tool. You can make a line as pointed as a pen to a line as thick as a bold brush with the airbrush. It's such a precise tool. Yeah. So you can control. Yeah, very much. And fifth thing which you should keep? Fifth thing is good camera. Maybe good camera. Good camera and one very good thing, music भाई. You need music in a good studio. Music, yeah. बाकी सबसे तो चल जाएगा काम. Where do you buy your art supplies from? अब तो इट्स ऑल Amazon. I'll be very genuine. बट पहले जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो क्या होता था कि कितनी सारी ना सप्लाईज आई यूज टू फाउंड. एंड अभी Amazon पे तो तब भी अवेलेबल थी, पर बैक इन लाइक 2018 आई यूज टू टेल कि यार लेना पापा, नहीं ठीक नहीं होगा, अमेजोन से नहीं मंगाना, ट्रस्ट नहीं करते थे. देन आई यूज टू ट्राई टू फाइंड इट इन इधर स्टेशनरी. दिल्ली से ले लिया काफ़ी सारा सामान. लुधियाना में आई यूज टू ट्राई टू फाइंड अ फ्यू स्टेशनरी जो अच्छा था. बट अब तो इट्स और क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है. किस चीज़ का? मतलब आर्ट सप्लाई जो आते हैं आपके काम पे. डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस. बट ये नहीं है कि अच्छी सप्लाईज आपको अच्छा काम देगी एट द एंड. अभी एज अ बिगिनर तो हमें बहुत लगता है. आई विल से वन थिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं हमको लगता है यार ये स्टेशनरी मिल जाए, आई एम गुड फॉर दैट. उसके बाद तो मैं बस खतरनाक काम करके मैं तो आर्टिस्ट बन जाऊंगा. बट ऐसा नहीं होता. आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो खुद की मेहनत है वो ज़्यादा आपको सिखाती है ना. अब मेरे को आप सस्ती पेंसिल भी दे दोगे ना, मैं वो उससे अच्छा काम करके दिखा दूंगा. पर जो बिगनर होता है उनको ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है. मेरे लिए भी मुश्किल था जब मैंने स्टार्ट करा था. तब हमको लगता है हाँ वो 15,000 की पेंसिल यूज़ कर ले इसीलिए उसकी ड्राइंग अच्छी है. पर जब आप एक बार आ जाते हैं आपको काम करना, फिर आप एकदम चीप इक्विपमेंट से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो. इट्स जस्ट अ टूल एट द एंड ऑफ डे. आप उससे क्या क्रिएट कर रहे हो, दैट इज ऑन यू. व्हिच सप्लाई डू यू यूज द मोस्ट ऑन एन एवरीडे बेसिस? Airbrush. Yeah, I use it. Tell people about airbrushes. I use a lot of airbrush in my oil paintings also. I use base drawing with airbrush. Like if I need a background,
gradient background, I'll do it with airbrush, and then I'll go with oils on top of it. So that is my way of going. So मतलब airbrush is such a like underrated tool ना, कि आप उससे कुछ भी मीडियम पे कुछ भी सरफेस पे काम कर सकते हो, और बहुत ही airbrush से आप कुछ भी तरीके का टेक्सचर से लेके एकदम स्मूथ फिनिश लेकर आ सकते हो. सच ए अंडररेटेड टूल. एंड उससे आप चाहे आपको टेक्सचर ऐड करने हो, चाहे आपको ग्रेडियंट्स ऐड करने हो, चाहे आपको स्किन टोन्स एडजस्ट करने हो, एयरब्रश कैन उसके अंदर आपको बस लिक्विड फॉर्म का पेंट डालना है. इट कैन बी वाटर बेस्ड, इट कैन बी अल्कोहल बेस्ड, इट कैन ऑल्सो बी ऑयल बेस्ड. अच्छा, या कोई एयरब्रश की कंपनी है जो स्पेसिफिक? Yeah, there are brands like Iwata and Harden and Steenbeck. They are but expensive. उनका एक airbrush is like 30,000. So you don't need to get that. Get a really basic airbrush. Amazon पे 1500 का मिल जाता है. And yeah, obviously need a compressor with that. That is a little expensive. 7,000-8,000 का आता है starting वाले. But yeah, it's a really good tool to invest in if you want But what to is pursue it. the USP of using an airbrush versus a brush? Airbrush में ये होता है कि work gets done faster. Yeah, you can cover a lot of things quickly. Like मैंने को जब कई बार बहुत बड़ी पेंटिंग्स करनी होती है ना, I need a really sky जैसे बनाना है. अभी पेंट से I'll try to make the gradients. With airbrush I can do it in 2 hours. एक मैंने ऊपर gradient मारा, एक नीचे मारा, and your perfect seamless gradient is ready with airbrush. Yeah. Not bad, yeah. Okay. Yeah. Last question, a question that we ask. Yeah. What has been your most heartful moment in your entire journey? One was जैसे president वाला definitely है ना. And another is I think जब आप अपने काम को exhibited देखते हो, so that's a really good thing. Yeah, I'll say probably one of my, जब मेरा बैचलर्स इन फाइन आर्ट का फाइनल ईयर डिस्प्ले हुआ था ना, तो अपना एनुअल शो ही होता है हर साल की तरह, बट एक वो फाइनल था एंड आई डिड ऑल आई कुड. एंड उसके बाद जब वो मैंने काम लगा दिया था, आई वॉज सो हैप्पी विद इट. इट वॉज सच एंड व्हेन माय तब पेरेंट्स भी आए देखने के लिए, फ्रेंड्स आए एंड ऑल, एंड एवरीवन अप्रिशिएट योर वर्क. सो दैट वॉज सच अ हार्टफुल मोमेंट फॉर मी. Seeing your work exhibited and final display of your bachelor's, that was a really good feeling. And you know, I love the fact about you that Ekam, you explore so much. मतलब मैंने आज तक नहीं देखा. And you have age by your side. क्यों ना करो, मैं भी होता 20, 22, 24 साल का, मैं भी explore. And अभी I'm like, अरे I'll go with the flow. I'm not sure I'll be a production designer or an artist अभी. That is exactly what I wanted to ask. Just exploring. Do you have a goal for yourself? 5-year goal plan for yourself? Yeah, I want to be a better artist tomorrow. That's it. Most beautiful thing anyone could have Yeah. said. I want to be a better artist. Yeah. And I hope you do. Yeah, मतलब Yeah. I think you're doing well. Financially you're stable. Because I know कि कितना पैसा लगता है Yeah. आर्टिस्ट बनने के लिए भी, या फिल्म मेकर बनने के लिए भी, या प्रोडक्शन डिजाइनर बनने के लिए भी. Yeah. So this is very important. But thanks Ekam. I think this Yeah. has been a very educative Same. session. It was fun. And we will surely have another podcast. Yeah, with proper time. With proper timings. Yeah. And in Pune, hopefully. Yeah, sure. Thank you, Ekam. I think it's been a. So I was asking you, do you have a 5-year goal plan? You said you just want to be a good artist. Yeah. Oh, fantastic! And I hope you end up becoming a legitimate artist. And yeah, man, that's about it. It was a very fun session. मुझे बहुत मजा आया. And thank you for being part of the Hot Yeah, Show. thanks for do you have inviting anything to me. say? Thanks for inviting me, and yeah, do subscribe to this channel and my channel also if you're Yeah, not do a subscribe to subscriber. both the channels. Art, Yeah. educative content, all the fucking Yeah. time, guys. Yeah, thanks for watching. So this is me signing off, your host Agaman Sethi at the Heartful Show. It was a very fun episode. So this episode was all about art education. We had Ekamjot Singh here, who himself is an art educator. He's a filmmaker. He's a production designer. He's also an artist himself. Go follow his Instagram. All the handle is right here. You can tap onto this. Go subscribe and do follow us and share some videos of us. Show some love. Thank you guys. Cheers. God bless you.